ठीक है, all right. Yes, बढ़ते हैं, start I करते हैं. hope this is getting recorded properly. So Is the recording start हो गया है? हाँ, मैंने दोनों का फिलहाल ऑन रखा Oh, हुआ है, okay. so I can keep it cutting ways में. सही. All right, so we are doing this recording super randomly. So I'm sitting here कहाँ देख with रहे दोनों की तरफ. कहीं देख सकते हैं. So I'm sitting here with Mr. Hamza Daginawala. He's a mix master engineer and a recording engineer. So welcome to J Studios Academy. Thank you for having me here. तो ये super एकदम random है, Mhm. and he's visiting the city, Pune. So we just thought to have a small chit chat and just share a bit of knowledge and understand who he is exactly, and see his perspective towards his whole journey of music production and mixing mastering engineer. Being a mixing mastering engineer, he also has his own studio in Surat, which is called as Studio 53. Studio 53, and he has worked with many films. He has done ad films also. He has worked with multiple production houses. So he's sitting here with us, and I didn't know कि हम लोग ऑर्कुट के टाइम से फ्रेंड्स है, because it was like DJ Hamza करके था पहले, and I thought कि I have just discovered someone randomly recently on Instagram, but he just told me recently कि हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं. Then it clicked before कि okay ठीक है, ऐसा इतना old connection है करके. But now we are here, we are sitting and chit chatting. So let's understand from his perspective overall whatever the questions we are going to ask him. So now Hamza, Yes. how do you feel being in Pune today? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. वेदर and climate वेदर तो overall? बढ़िया है यार, एकदम बढ़िया है. गर्मी से निकल के अच्छा हिल स्टेशन वाला माहौल है, मस्त मजा आ रहा है. So now you're from Surat Yeah. originally, or like Ahmedabad, like I am born and brought up in Surat in Surat? and based in Surat right now. Okay. Yes. So now what are you here in Pune for? I'm here for a training purpose. I train brass bands, so that's what I'm here for in तो Pune. brass bands मतलब क्या exactly? मतलब Basically, I'm from a Daudipura community, and our community has bands depending on the cities, okay. their individual cities. So I train bands, marching contingents to play the tunes in our community gatherings and festivals and sort of like that. So I'm here for that. So you train them in what sense? Like क्या aspects है that you train in? See, basically, how you train a kid to learn a language, ABCD कैसे सिखाता है, अच्छा. वैसे So ही music theory basically. म्यूजिक थियरी से Okay. स्टार्ट होता है. देन वी गो टू इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स एंड देन वी Okay. डू एन ensemble and Okay. drums and everything, and then we Okay. play together. So now, like for how long are you doing this for the community? I'm doing this since past 2000. I started 2011. 2011. Yeah, That's 2011, more 2012. than 11 years. More than that, more than it's Okay. मतलब 14-15 साल Crazy. हो गया है. Crazy. So now, is it different? The brass music theory, is it different than the normal music theory? Which No, it's Okay. it's same. Okay. मतलब फाउंडेशंस तो सबका सेम ही है म्यूजिक के अंदर. फिर वो Okay. इंस्ट्रूमेंट हो, कोई Right. म्यूजिक हो, Right. कोई राग हो, Right. सारेगामा तो सब में है. हाँ. बस वही है. Okay. इसका थोड़ा नज़रिया अलग है, अलग है. उसका पर्पस अलग है, तो उसको Okay. थोड़ा अलग वे से अप्रोच करता है. Okay. Not like the mainstream music and all. Okay. It is very confined to a certain section and community based only. Okay. So what widespread नहीं है, So- generalized नहीं है, commercial नहीं है. That is what you're here for. Yes. How many days exactly? I'm here for like a week. For a week. Week So and it मतलब is. एक वीक में ट्रेनिंग हो जाती है या फिर जस्ट अ स्टार्ट और समथिंग? नहीं, there are parts of it, sessions होते हैं. Okay. तो this is my second session here. So you'll keep on visiting Pune. हाँ, until मतलब एक अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते, बेसिक्स उनका कंप्लीट हो जाता है, then they can do it on their own. Okay. So we'll have more sessions. With Hopefully. them. All right. So now, going back to your days where you actually got introduced to music production or Yeah. music world. Let's start from there. So एक छोटा सा journey पे लेके जाना हमें. Mm-hmm. Like since your childhood, when did you get interested in all these things, and how did it influence you, and how come you're here today? See, music has been a part of me since I don't know, since ages. But I started the production journey started because I had this knack of how music is made.
because as I said right now, okay, you know, training community bands, as we also have our own community band in Surat, Right. and I was a part of it since I was 4. Okay. I'm 37 right now. मतलब you're also playing. हाँ, yes. Okay. And So- you're 37 now. हाँ, तो it's been like 34 years of experience up till now, almost all my life, since I began to understand. दुनिया को जब समझता है, मतलब बच्चा कुछ समझता है, हाँ. तब से मैं मेरी कम्युनिटी बैंड से जुड़ा हुआ हूँ. Okay. तो दैट म्यूजिक बैकग्राउंड वाज देयर एंड देन केम द एज ऑफ कंप्यूटर्स हाँ. अर्ली 2000s के अंदर. सो कंप्यूटर घर में आया. कंप्यूटर से क्या क्या हो सकता है, गेम तो नहीं खेला जा सकता हाँ. तब तो. हाँ. My father used to visit Mumbai for, you know, business and all. So he used to get this magazines called PC Mag. हाँ. उसके अंदर there used to be demo CDs of the हाँ. डेमो CDs होता था. उसके अंदर सॉफ्टवेयर आते थे डेमो वर्जन के. सो इफ यू लाइक इट देन यू कैन परचेज इट ऐसे. सो सम ऑफ द CDs हैड दिस सॉफ्टवेयर. उसमें वन ऑफ देम वाज FL Studio, अनदर वन वाज Propeller Hit. एक PC Mag, PC Build ऐसे करके भी कुछ आता था. हाँ, PC Mag आता था. They were like 2-3 magazines. 2-3 magazines. एक डिजिटल करके भी कुछ हाँ, था. हाँ, I remember. You know, 2-3 magazines were like that. Because that was the exact way how I also discovered music world. Yeah. मतलब मुझे virtual DJ का सॉफ्टवेयर उसी CDs के थ्रू मिला. Yeah. Even Reason का सॉफ्टवेयर भी उसी CDs हाँ, के मैं through मिला. जब मैं वही कि हाँ. वो सॉफ्टवेयर के अंदर there was I found FL Studio and Propeller had Reason. Reason. So I started, you know, fiddling around. Reason डेमो आता था तब तो. हाँ. 20 मिनट चलता था. हाँ. 20 मिनट के अंदर मतलब Export तब करना तो तो हाँ. save नहीं होता. And this I'm talking 2002-2001 when I was around 13-14 years old. अब तब था मतलब टीनेज एक होता है कीड़ा. आ जाता है. हाँ. और कंप्यूटर भी नया नया था. हाँ. क्या कर सकते हैं. तो यू नो फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. एंड तब देर वॉज दिस थिंग कि रीज़न जो सॉफ्टवेयर है म्यूज़िक प्रोडक्शन का, इट डेमो वर्जन के अंदर इट यूज टू यू नो ऑपरेट ओनली फॉर 20 मिनट्स. Right. 20 मिनट्स के बाद वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता था. बंद हो जाता था. Right. बट लेकिन वो 20 मिनट्स आप खुल के यूज़ करो उसको, या सिर्फ सेव नहीं कर सकते थे और वो 20 मिनट्स के बाद बंद. लेकिन आप उसके अंदर कोई भी ऐसा लिमिट नहीं था कि भाई ये चीज़ नहीं यूज़ कर सके, ये सैम्पलर. आप खुल के उसको यूज़ करो. Right. तो दैट्स हाउ आई लर्नड कि 20 मिनट के अंदर उसको कैसे यूज़ कर सके. क्योंकि तब तो पैसे नहीं थे इतने कि भाई खरीद लो, उसी के अंदर खेलना था. तो देर वर डेमो सॉन्ग्स इन इट. आई यूज टू उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि भाई ये कहाँ से बजा, ये सैंपल कहाँ से बजा. प्रोजेक्ट मिला है. हाँ, अभी इसको ब्रिक बाय ब्रिक देखना है कि कैसे चल रहा है. ये पियानो ये कहाँ से बजा है, इसको कैसे बजा है, इसको कैसे कैसे करके. I remember one thing that मतलब now that you're saying this, एक क्लिक हुआ है कि पूरा जो प्रोजेक्ट खुलता था, we हाँ. used to see the whole bunch. हाँ. And then I remember कि मैं एक एक चीज डिलीट करते जाता था till the time I found कि पियानो कहाँ से बज रहा है. यस, सिर्फ कहाँ से मतलब बज ढूंढना भी एक इट वाज अ जर्नी. Right, right. क्योंकि पता नहीं था कि ये सैम्पलर है, इसको इसके अंदर से पियानो बजता है या कुछ आर्प बज रहा है या बेस बज रहा है. तब हमें ये तो ऐसे ब्लॉक्स दिखते बस अच्छा कुछ था, ये ऐसा कुछ म्यूजिक वाला कुछ Yeah, सैम्पलर right. अच्छा है, इसके बटन्स अच्छे, इसका कलर अच्छा है, UI अच्छा था बेसिकली आज के Right. ज़माने में बोले चाहे तो. I think रीजन का एक था टैप दबाओ पीछे चला जाता था. वायर्स पूरे दिखते wires थे. दिखते थे. हाँ, तो वो बढ़िया बहुत चीज़ कॉम्प्लिकेटेड थी. हो गया. ये वायर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ ये पैच करो वो पैच करो. फिर कभी कभार वो पैच निकाल देते तो साउंड नहीं आ रहा है. फिर लगा अरे मैं इंजीनियर बन गया, मैंने निकाल के वापस लगा दिया तो साउंड आ रहा है. मतलब बट उस चीज की वजह से वो कीड़ा आया लेकिन. यस. Why is it हाँ, कुछ करना है? वही कि हाउ आर थिंग्स बिहाइंड द सीन, हाउ इट इज गेटिंग प्रोड्यूस एंड हाउ इट इज साउंडिंग, वाई इज इट साउंडिंग जो अभी सुनाई दे रहा है. तो वही जो 20 मिनट की जर्नी थी उसके अंदर आई लर्न मेकिंग सैम्पल्स, लूप्स और क्विक कि 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, खत्म हो 20 जाएगा. मिनट में करना है इसको. तो It's like you can say becoming a pro at a game only. हाँ कि तुमको एक टाइम लिमिट दिया उसके हाँ, अंदर वो ये में ऑब्जेक्टिव level, है, हाँ, इसको लेवल को complete करना है. तो दैट्स हाउ फिर जर्नी बढ़ती गई, थोड़ा एक्सप्लोर करते गए. देन दिस एरा केम ऑफ टॉरेंट्स.
Torrents, oh yes. तो टॉरेंट से फिर पता चलता है कि भाई इसको पायरेट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो फिर वो जुगाड़ करके रीज़न पूरा फुल वर्जन आया था, तो तब फिर मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता था लूप्स को. अब लूप्स को एक्सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन लूप्स को यूज़ कर. और एट दैट टाइम in the Indian music industry there was this generation which was coming up, जो remix वाला जो section था ना, तो बढ़ रहा था. It was brewing Right. कि भाई ओरिजिनल्स है और ओरिजिनल गानों के रीमिक्स आ रहे हैं. तो उस टाइम जोएब खान नहीं, आई एम टेकिंग नहीं, मैं अभी और पहले की बात. हाँ, अच्छा, उसके पहले भी डीजे तो है, सुकेतु yes, वाज yes. देयर वाज अपाची इंडियन, Yes, Apache देयर वाज Indian, बाली सागू. बाली सागू. हाँ, oh shit. ये जो ट्रेंड था ना, जो Crazy. पहले के गानों को जो मिक्स मतलब रीमिक्स करके वो लोग, तो ये कैसे कर रहे थे. फिर मैंने वो डीकंस्ट्रक्ट कर कि हाँ, ये यहाँ से गाना उठाया, Drum इसके machine use करके उसको वो लोग हाँ करते थे. बीट बहुत मैच किया है, टेम्पो लाया है, लूप किया है. Bro, in fact, Bali Sagu, if you listen today also, हाँ, it sounds fresh to me. यस. Crazy fresh. क्योंकि उसने किसी को देख के नहीं किया है ना. Right. उसका आइडिया जो पहले था हाँ. वो आज भी 20 साल बाद भी रिलेवेंट है. Right. उसका प्रोडक्शन का जो आइडिया था, जो Right. ग्रूव का आइडिया था, वो कहीं से सीखा नहीं. हाँ, Hmm. मे बी उसके तब 90s के अंदर जो वेस्टर्न जो हिप हॉप था, जो अमेरिका में था, Right, right. वहाँ से इन्फ्लुएंस. लेकिन ये कम्प्लीटली इंडियन के है, लिए- हाँ, इंडिया के लिए नया था. इंडिया के लिए नया था. Yeah. तो वो एक जो है वो आज भी रिलेवेंट है उसका आइडिया. Right, right. तो तभी भी आज अपने को फ्रेश सुनाई दे रहा है. मतलब द फर्स्ट ट्रैक विच आई हर्ड वाज प्रॉपर रीमिक्स वाज द चोली के पीछे क्या है, मिक्स बाय बाली सागू. वो है, Okay, okay, yeah, 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 मिलेगा yeah. आपको. Yeah. वो I ट्रैक ने think मुझे, वो cassettes में भी आता था. हाँ, तब कैसेट्स का ही ज़माना था. अगर आपके पास पैसे हो तो फिर आप सीडी ले सकते थे. तो वो ट्रैक ने इट गिव मी अ किक कि ये गाना ऐसा है ओरिजिनल, इसको इसने ऐसे बना दी है, लूप्स डाल के ये डाल के ये डाल के. तो कैसे किया होगा वो, कैसे से पूरा कीड़ा जागा कि भाई Correct. मैं भी. तब वो मेरा वो प्रोपेलर हिट का रीज़न का वो चल रहा था. लूप्स वहाँ से निकाल के फिर टेम्पो मैच करने नहीं आ रहा था. गाना तो यहाँ पे चल रहा है, मेरा तो यहाँ पे चल रहा है. फिर एक कूल एडिट प्रो करके, जो आज अडोबी ऑडिशन है, वो पहले कूल एडिट प्रो हुआ करता था. तो वहाँ से कुछ देख देख के कि भाई उसको कैसे टाइम में कम करके उसको बीट उसकी ला सकते हैं. हाँ. मतलब बीट कैलकुलेट करना भी पहले, आज तो बहुत सारे टूल्स है जो डालो प्रोसेस एक करो click थे. हो जाए और तो पता चले. तब तो पहले 1 Sync 2 दबाओ. 3 4 1 2. I used to do this. फिर उसको कैलकुलेटर पे मेरा एक फॉर्मूला था कि इसको 60 से डिवाइड करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बीपीएम मिल जाएगा. Right, मतलब वो सब मैन्युअली किया है बीपीएम कैलकुलेट. right. तो पहले टेम्पो, सॉन्ग का टेम्पो ओरिजिनल उसको कैलकुलेट करो, फिर बीपी ग्रुप का तो लूप जो बना उसका तो बीपीएम आपको मिल जाएगा. फिर उसको इसके साथ मिक्स करो, या तो फिर लूप को सॉन्ग के साथ मिक्स करो. Right, right, right. तो फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई एक सॉन्ग के अंदर लूप लगाने की, बेस लगाने की. बेस तो अभी पता ही नहीं था क्योंकि मेलेडी का तो आइडिया ही नहीं था, सिर्फ ग्रूव का आइडिया था. मेलेडी कैसे निकालेंगे, बेस कैसे निकालेंगे, वो सब एलिमेंट्स मतलब जैसे जैसे सुनते गए दूसरे के गाने. फिर देन डीजे सुकेतु, डीजे अकबर सामी, डीजे अकील. Where did you discover these guys? On radio first या फिर और Orkut and this and that? हाँ, ऑर्कुट तो बाद में आया. पहले तो जो Before. हाँ, बिन तेरे सनम वो तो 40 TV पे वॉल्स, चलता था, टीवी वो पे जो MTV पे MTV चलता था, और वो- चैनल वी पे जो उनके वीडियोस आते थे, बहुत. वहीं से मिला है. फिर वो सब नाम इंट्रोड्यूस हुए कि भाई ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं. तो वही जागा कीड़ा, इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं. देन फिर वी स्टार्टेड. फिर वही इंटरनेट बहुत ही वाइड स्प्रेड हो गया 2004-2005 के अंदर. Right. हर घर में इंटरनेट था. उसके Right. पहले तो सब घर में होम पीसी यूज़ कर रहे थे. हाँ. तो फिर आई स्टम्बल्ड अपॉन अ वेबसाइट Okay, continue. एट दैट टाइम कॉल कूल गूज करके Cool था. Goose. मतलब कूल गूज ऐसा था कि जो गाने आप सीडीज बाई नहीं कर सकते तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते थे. हाँ. फिर उसके तो बहुत सारे वेबसाइट्स निकले. तो तब देर वॉज उसके अंदर एक कम्युनिटी था जो बूटलेग्स बने. बूटलेग्स तो तब पता भी नहीं था बूटलेग्स किसको बोलते हैं. देर वर डीजेज हु आर मेकिंग रीमिक्सेस ऑफ दिस सॉन्ग्स एंड ऑल. निखिल and all. हाँ, डीजे एनवाई के. तब पता चला कि एनवाई के कौन है. तो उसके गाने बहुत अच्छे थे. एंड He actually got a lot of electronic music into Bollywood. यस. तो
फिर मैंने सोचा कि भाई अपने गाने वहाँ पे कैसे डाल सकते हैं. अकाउंट बनाया, कुछ भी मतलब तब जो था बनाया था वो अपलोड किया. फिर डाउनलोड्स चेक कर कितने डाउनलोड्स हुए हैं. मतलब अच्छा गाना है तो डाउनलोड ज़्यादा होंगे. फिर उसके अंदर ईमेल आईडी छोड़ देते थे, याहू मैसेंजर का यूज़र नेम छोड़ देते कि भाई कुछ काम है तो. हाँ मतलब तब तो कुछ इंस्टाग्राम या कुछ टेक्स्ट व्हाट्सएप नहीं था ना, तब तो यही था. तो तब डालते थे कि भाई अगर कुछ काम है तो मुझे मैसेंजर पे मैं बना के दूंगा, ऐसे करूँगा. तो दैट्स हाउ दिस जर्नी ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसिंग बूटलेग स्टार्टेड. एंड बस वही से फिर फ्लरिश होते होते काम अच्छा होता गया. एंड ओके, सो आई वाज आस्किंग यू समथिंग बिफोर दिस, बीच में बोलने वाला था कि हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स टू सपोर्ट यू इन दिस? सी माय पेरेंट्स आर चिल. ओके, मतलब जब तक शौक है तब तक करो. हाँ. तो my father was so inclined towards music during his days, but due to family responsibilities he shifted to our business. But then when he saw that I also have this same knack about music, उनका भी वो सपने जाग गए कि भाई अप्रोच कर सकते हैं, मतलब इसको अच्छे से. he had an idea कि okay what this field can bring. Yes. So he too was also, मतलब उनका शौक था कि भाई गाने कैसे रिकॉर्ड होते हैं. तो ही ऑल्सो गॉट दिस, जैसे मैं बता रहा कूल एडिट प्रो, वो पीसी मैक में से मिला. तो ही गॉट अ माइक्रोफोन, ही प्लग्ड इट इन द CPU पीछे जो पहले कार्ड आता था. एंड देन ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग हिज वॉइस. तब जो CDs आती थी तब कराओके ट्रैक्स मिलते थे, कंपनीज़ के थे. तो वहाँ से रिप करके उसके अंदर डालते थे. देन ही यूज्ड टू रिकॉर्ड ओवर इट, और इको डाल दिया, डिले डाल दिया. तब तो पता नहीं रहा, इफेक्ट डाल दिया, अच्छा लग रहा है. देन ही यूज्ड टू मेक इट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एंड ऑल. तो यार वो लोग तब इट वाज शॉकिंग, बिकॉज अगर कुछ रिकॉर्ड करना है तो यू हैव टू गो टू अ स्टूडियो, यू कैन डू इट एट होम. तब ऐसा कुछ हैंडहेल्ड डिवाइसेस या कुछ था नहीं. तो दे वर ऑल्सो लाइक भाई कैसे किया इसको. फिर जिनको म्यूज़िक का शौक है तो वो लोग अप्रोच करने के भाई हमको भी रिकॉर्ड करना है. देन माई फादर सेटअप अ PC एट हिज ऑफिस. तो और ऑफिस के टाइम्स के बाद डिनर करके वो आते थे और ये जितने भी शौकीन हैं उनको रिकॉर्ड करते थे. देन उनको भी एहसास हुआ कि भाई दिस इज़ गुड थिंग, मतलब ये भी कर सकते हैं इसको. देन ही स्टार्टेड चार्जिंग फॉर इट. देन दैट बिजनेस ग्रू. देन माई one fine day my father was like कि भाई now you are also producing into it and ये हो रहा है, तो why don't we full time venture into it. तब the thing was only music. अब तो I do a lot of things in What was your age when your father actually I said ना gave a word of support कि कर सकते करके? 14-15 I was in my 10th grade at that time. Okay. 10th में था तब मैं. मतलब तब डैड भी रेडी हो गए कि चलो. He was also doing his side hustle in this. अच्छा. उनका भी ये डिनर के बाद चल रहा था. अपना 9 to 7 9 to 8 तो अपना जो बिजनेस है वो हो रहा है. ये उसके बाद का जो बोलता है ना कि भाई ब्लो ऑफ योर स्टीम, चिल करने के लिए ये होता था. तो ही ऑल्सो मतलब कि भाई दिस कुड बी एक्सपैंडेड इनटू अ फुल टाइम बिजनेस. वो बिजनेस तो चलता रहेगा, उसको बंद तो करना ही नहीं है. बट दिस ऑल्सो कुड बी एन अपॉर्चुनिटी कि भाई ये अभी विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल लोगों के पास तो उनके भी शौक़ है. तो शौक पूरे करने के लिए मुंबई दिल्ली नहीं जा सकते ना. कुछ यहाँ पे भी होना चाहिए. तो देन वी थॉट ऑफ सेटिंग अप अ स्मॉल सेटअप स्टूडियो. और वहीं पे आई यूज टू मेक माई बूटलेग्स एंड ऑल, एंड माई डैड यूज टू डू रिकॉर्डिंग्स फॉर आर्टिस्ट एंड ऑल. फिर वहाँ से दिस वाज एवरीथिंग इज इन सूरत ओनली. वी हैवंट गॉन टू मुंबई अभी तक ऐसे काम के लिए. रिकॉर्डिंग करने के लिए अगर किसी को चाहिए तो डैड के पास सूरत के ही. हाँ. एंड देन फिर काम अच्छा होता है ना तो वर्ड ऑफ. तब कुछ पब्लिसिटी ऐसा था नहीं, मतलब यू कांट एडवर्टाइज रिकॉर्डिंग स्टूडियो. लोग कहेंगे यार कौन जाता होगा, जो मेन स्ट्रीम है लेमन जिनको नहीं है वो कौन जाता. इनिशियल बिजनेस क्या था फिर फैमिली का? वी वर इनटू वाटर पंप्स, बोरिंग जो होता है ना जमीन में से पानी निकालना. दैट बिजनेस इज स्टिल देयर रनिंग. या माय अंकल दैट वाज द मेन. एंड म्यूजिक बाजू में ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं. दैट माय अंकल हैंडल्स इट राइट नाउ. तो फिर वही कि भाई वी स्टार्टेड रिसर्चिंग इनटू इट कि भाई हाउ इट इज़ एक्चुअली डन
properly and all. Hmm. तो देन काम करते गए वर्ड ऑफ माउथ से कि भाई यहाँ पे काम अच्छा होता है, यहाँ पे काम अच्छा होता है. देन वी स्टार्टेड गेटिंग गुड वर्क. Hmm. And me and my father, we haven't passed out from any academy. Right. We don't have any formal training in sound engineering. We are not certified sound engineers. What we have achieved till now is by troubleshooting every project which we got. Okay. Okay. हमने हमारे ट्रबल शूटिंग से सीखा है कि इसको कैसे करना है. Right. इसको बोलते हैं जुगाड़. कि अगर जुगाड़. अगर अगर पहले क्या था कि सिर्फ वोकल्स रिकॉर्ड करना है. Hmm. फिर वी गॉट अ ट्रैक के भाई हमको तबला रिकॉर्ड करना है. Hmm. तबला कैसे रिकॉर्ड करेंगे, Hmm. सीखा, जाना, एक्सपेरिमेंट किया. Right. फिर एक बार रिजल्ट निकलना आ गया तो हमको पता चल गया दिस इज द वे यू रिकॉर्ड तबला. Hmm. फिर गिटार कैसे रिकॉर्ड करना है, कोरस कैसे रिकॉर्ड करना Okay. है. So let me stop you over there. How many awards do you have? आई हैव 2 awards. नॉमिनेशंस तो बहुत हुए हैं. आई हैव 2 2 awards for what? I have been awarded by Indian Recording Arts Academy for being the best ADR engineer. Okay. ADR engineer is an automatic dialogue replacement, जिसको बोलते हैं डबिंग. Right. Dubbing. जो फिल्म्स के अंदर जो डबिंग होता है, Right. तो डबिंग का एक इंजीनियर होता है Right. कि एक एक्टर का शूटिंग ख़त्म हो गया, Hmm. फिर वहाँ पे बहुत सारे नॉइजेज होते हैं जिसको रिमूव करना Right, होता है. तो right, वो right, right. रिमूव नहीं कर सकते, तो एक्टर आता है स्टूडियो पे और डायलॉग डब करता And है, you- डायलॉग डब करता है. एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट ही इज़ इन सिंक Right. एंड वो लगना नहीं चाहिए कि रिकॉर्ड किया है. Correct. इट शुड साउंड के वो वहीं पे ऑन द Right. स्पॉट शूटिंग के और टाइम वो पे. अगर एनवायरनमेंट अलग है तो वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको मिक्स करना पड़ेगा. इफेक्ट्स वैसे ही No, डालने that is पड़ेंगे. done by the re-recording Okay, engineer. But but- I have to make sure कि re-recording engineer Okay. को प्रॉब्लम ना आए. Correct. Correct. अगर वो चिल्ला रहा है Hmm. तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई माइक से 3 फीट दूर जा और चिल्ला. Correct. That's your guidance. That's my guidance. ठीक है. You have award for this. One. Yes. Second. It's the same award, but Okay, same. the first one I got for a film, ठीक है. Gujarati film, and the Right. second one I got for a short film. Okay, so let me That get was in this Hindi. straight. You have 2 awards. Hmm. You have worked for how many films? देखना पड़ेगा. अच्छा, मतलब बहुत है. So है. 10, 15. हाँ 20? 10-15 within, Okay. because I started this in 2018, the full, Okay. you know, तो तब तक यहाँ तक 10-15 फिल्म तो Okay, so हुई 15 है. big films, Yes. and I guess of course multiple ads and this and that. Ah. you've done. With this type of achievement, and you are not certified Hmm. sound engineer, Hmm. can we say safely कि certification actually doesn't give you any kind of validation? It's your experience, it's your कीड़ा, It's your experience practice. which counts. See, certification is के भाई पढ़ लिया है, मुझे ये आता है. बस. I'm not degrading or demoralizing or saying bad things about the academies. They are doing a good job. Right. They are educating the uneducated. Right. Right. ठीक है, उनका काम कर रहे हैं. Right. But they have a certain boundaries जो उनके बाहर वो नहीं जाते हैं. Right. ओके, मैंने तो मतलब अप्रोच नहीं किया है, बट कभी देखने को मिल जाता है कि दे हैव दिस, ये सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, ये सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, ये सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के टूल्स सिखाएंगे. लेकिन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में वो टूल्स को कैसे राइटली Correct. उसको यूज़ करना है वो तो इंजीनियर को खुद सीखना होगा. Correct. क्योंकि सबके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, Hmm. सबका सोल्यूशन सेम नहीं होता है. Correct है. वो टूल से आपको उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको सीखना होगा. Right. वो आपको अकेडमी नहीं So सिखाएगा. this is one thing which I also try to push in my academy. Whenever I'm Mhm. teaching my students, I'm trying to force them into that direction. Ki try to behave like a person who is into creativity. Yeah. Because you cannot do music production until unless you have a sense of creativeness. और मैं ये मानता हूँ कि creativity सब में है. Few people just find it very hard to tap into. Yes. That's what They I want to feel go the genuinely. easy way. Yes, they want to go to the easy way, but I am trying to tell them you have the treasure inside you. You just need to work little bit more into that. Yes. So half of the practices, half of the you can say my assignments are based completely on creativity. Hmm. Ki how can we trigger your brain to bring more creativity to you? How can you influence yourself Mhm. to be more creative? Yeah. I think it is possible. If हाँ, you are हो putting सकता the है. time in, then it is definitely possible. It doesn't matter ki how far you can sustain that creativity and this and that, but I believe every human being is creative. You just don't know how to हाँ tap हाँ into it. वो तो है, वो तो So है. can we take your example Mhm. and safely say this also कि
सर्टिफिकेशन वैलिडेशन अगर मिले नहीं मिले दैट्स नॉट द होल पॉइंट, बट हाउ यू थिंक अबाउट दिस फील्ड ऑफ म्यूजिक ऑफ इंजीनियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज हाफ ऑफ द पीपल थिंक सर्टिफिकेट मिल गया मतलब मेरे को आता है मतलब खत्म है, ऐसा नहीं है. See, the thing is, let's talk about the practical world. Even if you are qualified from, say, Trinity School of Music, or say Point Blank Academy, or say Full Sail, ठीक है, that will not land a job for you into, you know, one of the biggest studios in India or Mumbai, or working with a big named artist. Right. वो आपका काम देखेंगे. Right. ठीक है, certificate is a thing. It's not bad. He knows that you know this software. Right. आपको ये माइक कैसे लगाना है, इसको कैसे स्विच ऑन करना है, इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, पता है आपको. Right. लेकिन उनके साथ काम करने के लिए उनका अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है कि आपने कैसा काम किया है कि वो आपसे जुड़े. करेक्ट. एंड इफ यू हैव डन चैलेंजिंग वर्क, जो काम में दिखता है, करेक्ट. ऐसे ही नहीं बोल सकते आपके ये मैंने किया है. राइट. अगर और जो सुनने वाला है उसको पता चल जाएगा कि काम में दिख रहा है Correct, उसने correct. काम, और थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए तो ही you'll land up into a good, you know, team where you're working. But just because you think it, I have passed out from this so and so institute, I am qualified now. Right. It's not the case in the practical world. So मतलब मुझे ऐसा लगता है personally, I'm just putting out there कि even if the people, the students who already have a certification or who are doing certification right now in some college or academy, I think certificate will just give you one step ahead, but it will not give you the full-fledged qualification. Certification is just like कि मैंने इस चीज के ऊपर इतना साल तक काम किया है, स्टडी की है इस academy के through या फिर इस institute के through, and this is just a piece of paper which just proves that I have done that. But what I have done, what is my practice, ultimately मेरे को बैठ के काम करके करना होगा तो ही नहीं होगा. See, this certification thing, you know, ये तो मतलब आई डोंट नो हाउ मच इट अप्लाइज टू मी. मतलब आई हैव लर्नड माई ट्रेड जब यूट्यूब भी नहीं था. राइट. देयर वाज नो वन टू गिव यू दैट ट्यूटोरियल. अभी आप जाओगे यूट्यूब पे, आपको एक कीवर्ड डालो 100 ट्यूटोरियल मिलेंगे. इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है. मैंने जो मेरा काम सीखा है, how to use a compressor, or how to just use a reverb module or a delay module, or how to just chop a wave, उसको वापस join करना है, cut करना है, कैसे करना है. I have learned it by myself while listening to others. Right. उसने कैसे किया है, तो मेरे पास ये 3 tools है, उसको मैं कैसे यूज़ करके ये अचीव कर सकता हूँ. That is how I have learned it. Right. So my struggle is there. Right. जबकि आज के टाइम पे वो स्ट्रगल नहीं है. Correct. आप आज के टाइम पे द कोर्स है, मेहनत है, उसको भी सीखना पड़ता है. इट्स वेरी टेक्निकल, बट इट इज सर्व्ड ऑन अ प्लेटर. करेक्ट. इट्स लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग एंड ChatGPT को पूछो भाई ये कैसे करते हैं. हाँ. यू डू दिस वे. मतलब यू कैन बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू गेट स्पेसिफिक आंसर. यस. बट वो जो हंट फॉर दैट आंसर वो निकल गया. मे बी फ्यू पीपल विल से कि अरे मेरा टाइम बच रहा है, बट आई फील, मतलब ये मेरा पर्सनल है कि वो जो हंट है ना कि भाई वेयर डू आई डू द पैनिंग, एग्जैक्टली टू फाइंड दैट बटन. आई लर्न 10 more things before I'm finding the actual thing. एग्जैक्टली. तो वो भी तो हट जाता है. मतलब वही, फॉर एग्जांपल आई से यू कि 2009-10 के अंदर देयर वाज दिस थिंग, ह्यूज रेज अबाउट साइड चेनिंग. या इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आ रहा था. अब तो है, अब तो इट्स क्लिक ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन. ठीक है, वो निकी रोमेरो का प्लगइन डाल दो, किक खत्म हो गया. LFO टूल भी डाल दो, हाँ, खत्म हो गया. हमने साइड चेनिंग की है राउटिंग करके. एग्जैक्टली. आई स्टिल डू दैट. हाँ, आई स्टिल डू दैट. राउटिंग करके मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स कि एक थर्ड पार्टी कोई प्लगइन था, वो इसके ऊपर डाला है, इसको यहाँ से राउट किया है, फिर वही थर्ड पार्टी प्लगइन जिसके ऊपर साइड चेन कराना है उसको वहाँ डाला है, उसको राइट कर रहा है. और तब अपने पास देयर वाज नो दिस थिंग ऑफ ADSR नहीं था तब, जो अब साइड चेनिंग के अंदर ADSR होता है. उस टाइम क्या आई गेस
थ्रेशोल्ड कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितना हाँ, कंप्रेस बस। होना चाहिए और अटैक कितना चाहिए, हाँ। बस इतना ही। वो भी इतना डिटेल में नहीं था, और वो भी समझने के लिए अपने पास बस 4 फेडर्स दिख रहे थे। किससे वो अटैक से क्या होता है पता नहीं, बस इसको घुमाओ तो इसको पता चलेगा हाँ इससे दब रहा है, इससे दब रहा है, इससे इतना दब रहा है, इससे बहुत रिलीज अच्छा आ मतलब रहा इट है। वाज मोर ऑफ फील बेस्ड। हाँ, हम बस सुन रहे थे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है बस, मतलब हम्म। तब वैसे साइड चेनिंग Right. सीखा है। राइट। अब तो एक प्लगइन डाल दो और ड्राइव एड करो, बस खत्म। कितना चाहिए कितना चाहिए। प्रीसेट सिलेक्ट कर लो। मतलब ये एक लर्निंग कब हुआ है, राइट राइट। तो उसके पीछे एक स्ट्रगल है जो आप लोगों को नहीं करना है। और अब तो प्रीसेट्स, मतलब बड़े बड़े इंजीनियर्स प्रीसेट्स बना के दे रहे हैं, ये मेरा मास्टर का प्रीसेट है, इतने पैसे है, ये ले लो, डाल दो, तुम्हारा मिक्स हो जाएगा, पूरा एक रैक मिल रहा है पूरा तुमको। सब कुछ मिल रहा है। On that note, even I'm selling few of these. अरे गो चेक इट आउट ना, उसका जो सैम्पल पैक है, इट्स वन ऑफ द fabulous sounds which he has designed. And Super fab. These designs are like you'll not find it commonly anywhere. I mean, I've हाँ, मैंने focused on सुना है, that- yeah. that way. I'm planning to make a track out of it soon. मैं तो वेट कर रहा हूँ। मैं तो सबके प्रोजेक्ट को उठा के बोला चलो लेट्स डू कोलैबोरेशन। हाँ। स्नोफ्लेक्स ने बहुत अच्छा बनाया ट्रैक। हाँ, मैंने सुना। O2SRK is doing one of them, like बहुत Yeah. crazy, बहुत crazy लोग हैं। मतलब what I try to do with this sample pack is it is what it is, like snare है, but it's not that snare which you commonly hear in every random pack you download. वो एक टाइप का या फिर वो एक फैमिली हाँ। का फील होता है। But I try to do this in a way कि which is more crushed out or more distorted in a way, but you use it smartly. The main point is I'll not just give you sample in this way कि उठा के डालो। See, a good producer मतलब सीधा नहीं उठा के डाल देगा। हाँ। उसको थोड़ा जब तो तक करेगा, वो कुछ ना कुछ तो। कीड़ा है मसलने का नहीं करेगा, मतलब वो नहीं करेगा। फिर जिसको टाइम बचाना है वो यहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए, यहाँ बस से इतना ट्रैक हो गया। But वो एक मजा चाहिए like to वो है। editing personally. Studio, how did you build it? See, I What was the vision mainly? How हाँ. did you go and challenges So क्या-क्या बीच में? Studio 53 came because of a very good vision. We already had a studio, me and my dad. जैसे बात किया कि we started into Was it like proper professionally? professionally studio. Okay. It's named Digital Dunia Audio Studio. It's in Surat. It's And still functioning. Yeah. Oh, okay. My dad is operating it. Okay. So we were doing this project, and a client of ours who came from a reference, and he's a good well-to-do client. शौक से poetries लिखते हैं, ghazals लिखते हैं, and he wanted this to be, he got an opportunity to for one of his qawwalis to be filmed for a movie. Okay. It was a movie project. उनका एक कव्वाली था जिसको मूवी के अंदर जाना था। Okay. उन्होंने बाहर काम करवाए, बट उनको वो काम अच्छा नहीं लगा बिकॉज दे मेड इट वेरी टिपिकल बॉलीवुड. ही वांटेड दैट रॉ फील. But this is a Gujarati film. हिंदी फिल्म. Hindi film. Yeah. Okay. तो ही वांटेड दैट रॉ फील ऑफ दरगाह के बाहर जो कव्वाल बैठते हैं जस्ट विद द हारमोनियम एंड तबला एंड अ मैंडोलिन. A proper acoustical हाँ, vibe जो yes. आती है, right. उनको वो चाहिए था. वी डिड दैट Okay. and he was happy with the result. And then he was supposed to come for a meeting and we were busy and we had to make him wait. Okay. 30 minutes or so. He was sitting and then he was like sir આપણે આપણું સ્ટુડિયો મને લાઈક ગુજરાતીમાં વાત કરું કે ભાઈ why don't we make our own studio which is everything and all, so that we don't have to go outside. Okay. It's a good idea. हाँ. करते हैं. हाँ. And he's like, you go ahead and research about it. And he had this thing कि like अच्छा काम करना है और मुंबई ना जाना पड़े. I am staying in Surat, so Mumbai is like 4-5 hours drive from Surat. It's like मुंबई ना जाना पड़े, ऐसा काम करो. Okay. So that one line was like कि भाई मुंबई is a benchmark. ठीक है इंडिया के अंदर for Bollywood. Right. It is everything. Right. Now to compete with Mumbai, this studios needs to be on that level. Correct. So I started researching and कि भाई ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये सकते हैं. I researched for good 6-8 months. क्या use कर सकते हैं? What was the top of the line technology
in that 2015-2016 year क्या use कर सकते हैं. I did all my research and then we presented the whole plan. It's like ये है ना सब कुछ इसके अंदर कुछ जाना है मतलब we said कि भाई आज के टाइम तक तो है because music industry changes every 6 months. Every new technology कुछ भी नया आता है 3-4 महीने 6 महीने में आ जाता है. Even genres keep on हाँ. shifting that way. मतलब आज के टाइम के अंदर ये अगर बनेगा तो बेस्ट बनेगा. Then we were like कि भाई see I have this space, you go and check out and how it will plan out and everything. So we went there, planning करवाया था. Then we were like कि भाई acoustics and all कौन करेगा. And now the thing is कि in Gujarat we don't have any proper companies who does acoustics for studios and all. You have to call them from either from Delhi or Mumbai because Mumbai is a hub. Delhi में भी होता है अच्छा काम होता है. We're like why not call from Mumbai? So the partner which I'm talking about is like get the best one. So I approached Modi Digital, Aditya Modi Digital. Okay. Aditya Modi. Aditya Modi. Aditya Modi. And he's like, we are setting up a studio in Surat and we have this vision of creating. एक second. Recording चालू. तो we had a meeting with him that we explained our vision कि भाई हमको ऐसे ऐसे करना है and it was a good starting point because the Gujarati movie industry was also coming up. It had just recently came into public with good urban Gujarati films. So we were like कि एक अच्छा स्टूडियो बनाते हैं जिसके अंदर movies OTTs का भी काम हो apart from the regular music and audio business. We want to make it a multimedia studio. Right. जहाँ पे सब कुछ हो सकता है. It's not कि भाई सिर्फ यही काम के लिए है. We can do ads, mix होगा, master होगा, audio होगा, corporate काम होगा, documentaries का काम होगा, jingles का काम होगा, movies का काम होगा. मतलब कोई काम आएगा तो ना नहीं बोलेंगे उसको. मतलब वो vision, we are for everything. तो we started and then we were game, plans दिखाए. फिर he's like, what do you want to use in the equipment? And I said I have all this list which I have researched. He was also like, यार आपको इतना कैसे पता? Because see they also have this thing कि भाई मुंबई वालों को सब होता है कि बाहर को अगर कोई यहाँ से आ रहा है तो भाई आपने बहुत अच्छा रिसर्च करके किया है कि लाइक आई वांट टू डू दिस लाइक ओके फाइन देन 1-1.5 साल लगा for the studio to completely built and working मतलब क्यों 1.5 साल मतलब why didn't it go in it took time for the equipments to for come for the construction for the equipment because it is a large space. फिर बनने में कंस्ट्रक्शन में टाइम लगा. देन अकूस्टिक्स, देन वी डिड अ लॉट ऑफ टेस्टिंग, स्पीकर्स, कैलिब्रेशन एंड ऑल एंड द स्टूडियो वाज डन एंड फॉर 3 or 4 months वी डिड अ सॉफ्ट ओपनिंग काइंड. मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके अगर पब्लिक में जा रहा है और फाइनल आउटपुट में प्रॉब्लम आ रहा है तो यू आर क्वेश्चनेबल. तो वी हैड दिस प्लान कि भाई जब सेटअप हो जाएगा पूरा वी वोंट ओपन इट तुरंत. 3-4 सॉफ्ट लॉन्च मतलब जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके काम यहाँ पे करेंगे. विल गेट एन आइडिया ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स आर वर्किंग, हाउ द रूम इज साउंडिंग, वी आर गेटिंग जो पहले के स्टूडियो में जो आउटपुट आ रहा था वो भी ये स्टूडियो में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसको कैसे ट्वीक कर सकते हैं, क्या चेंजेस टेक्निकली कर सकते हैं. वंस वी आर सेटिस्फाइड कि अभी आउटपुट मैच हो रहा है करंट काम से, then we'll do a proper opening. So that when the new client comes ना तो there is no वो ये ना हो कि भाई ये तो मज़ा नहीं आया यहाँ पे, इतना बड़ा सेटअप है लेकिन वो क्वालिटी आउटपुट नहीं आया. तो क्वालिटी आउटपुट के लिए हमने 3-4 महीने वी डिड अ सॉफ्ट टेस्टिंग एंड ऑल एवरीथिंग, सब कुछ किया, ड्रम्स रिकॉर्ड किए, सब कुछ कोरस ये वो सब इक्विपमेंट टेस्ट किया, एवरीथिंग, all the mics, all the preamps, all the equalizers, all the analog outboard gears, everything we tested thorough and thorough. Once we were satisfied कि अभी अपना result मिल रहा है, then we did it. And March 4th March 2018 we opened up. Okay. And so like properly to public. Yeah, properly to public. And आज 2025 चल रहा है. And how's it going? Touch wood, good. Touch wood. So now, can you like quickly give us the names of each and every equipment that you have right now? What version? What exactly is it? Is it a monitor? Is it a compressor? What are you using overall? All the equipment. So I use a Mac Pro, late 2013.
on an Apple system, and my primary DAW is Cubase 14 जो अभी चल रहा है. Mhm. Apart from that, I have Logic Pro Tools for other. So this thing also I would like to tell कि भाई it is just not for my use, my studio. Mhm. It is for use You're of rented to other engineers. yeah, also. yeah. So if you want to rent my studio and if you're not comfortable with Cubase, Mhm. if you're running, if you use Logic or Pro Tools, I have it at my studio. You can come and do your thing. Mhm. So that is how कि भाई मैं ही अकेला बैठ के काम नहीं करूँगा भाई, ये Right. सबका है. Right, right. तो हमने we had purchased all the leading DAWs at that time. Okay, okay. जो अभी भी चल रहा है. And that's FL नहीं है लेकिन. FL नहीं है लेकिन आ जाएगा. ये आएंगे सूरत तो FL भी आ जाएगा. Have to visit then. But the FL is there for Mac. At that time it was not there. But वो अभी आया है. अच्छा that way you say. 2017 में लब लॉन्च नहीं हुआ था. नहीं, the PC which you have, हाँ, Mac Pro. Mac Pro. The Circle वाला, Yes, right? हाँ. मुझे लगा कि उसमें नहीं होगा करके. But नहीं I तब think Mac it's- के लिए FL नहीं था. Okay. वो आई लेकिन थिंक अभी उसका- 2020 के अंदर आई थिंक आया है. अभी रिसेंटली हाँ, 4-5 साल हुआ. 2020 में हाँ ही तुम आया. this thing I had all bought in No, but 2017 your में. Mac OS can install that. no? हाँ अभी मैं But कर उसके सकता. सपोर्ट आए तुमको नहीं? Mac Pro के सपोर्ट अभी तक हाँ आए? है. OS के मतलब चल रहा है. updates? Okay. दिस इज माई लास्ट ईयर ऑफ सपोर्ट. मतलब अच्छा, ये 2013 इसके बाद का नहीं आएंगे? अभी नहीं होगा तो फिर अभी नया मशीन लेने का देखेंगे. क्योंकि ये ऐसे चीज होता है, लाइक ये देखो, अरे वाह, iPhone 5. iPhone 5, हाँ लेकिन अभी इसके अपडेट्स बंद हो चुके हैं 5 हाँ. साल से. ऐसा कुछ हो रहा है क्या उसको? हाँ होता तो है. अच्छा. मतलब एवरी वन वॉन्ट्स टू अर्न आउट ऑफ द अभी तो अपग्रेड के अंदर पैसा कमाना है. हाँ. तो जब तक आप गेम में हो आप अपग्रेड करते रहो. ठीक है. वंस द मशीन गेट्स ओल्ड यू कांट अपग्रेड. So you're thinking to upgrade from Mac? राइट नाउ आई एम गुड. Okay. Well, it's working. इट्स वेरी fresh वर्किंग. and nice हाँ for हाँ एवरीथिंग. This is a long-term investment which is going great. एप्पल इज ऑलवेज गुड फॉर लॉन्ग टर्म. मतलब 10 साल तो भूल जाओ लेके. चलेगा ही घोड़े जैसे चलेगा. फिर अभी मतलब OS के अपग्रेड्स आने बंद गए. जब मेरे क्यूबेस के अपग्रेड्स आने बंद हो जाएंगे दैट टाइम आई विल थिंक ऑफ गेटिंग अ न्यू मशीन. Okay. Only if it demands कि you have to upgrade your PC to get the हाँ other. बिकॉज आई कांट डू दैट इन माई ओल्ड सॉफ्टवेयर वर्जन्स. जो नए जैसे मैंने बोला 6-6 महीने में नया कुछ होता है. होता है, हाँ. DAW के अपग्रेड्स में भी ऐसा ही होता है. Right. जब मुझे कुछ वहाँ पे ऐसा काम लगेगा कि भाई अभी मैं नहीं रहा तो फिर आई विल थिंक अबाउट इट. Okay. बट अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है. मैक के अंदर भी देयर इज अ हाँ, वेराइटी ऑफ M1 छोटा जो आता है. हाँ, हाँ. अब तो आई थिंक M2 आ गया है. हाँ. उसके अंदर भी देयर इज M2 अल्ट्रा versions एंड as well. नॉर्मल एंड ऑल. तो इट इज़ वाइड रेंज राइट नाउ. अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं. कंप्यूटर का एक्सपेरिमेंट हो गया अंदर. हाँ एंड आई एम रनिंग एंटेलोप ऑडियो एज माई IO. My midfield speakers are ATC and I have a 7.1 surround system as well. As I said कि Okay. मुझे फिल्म्स का भी हम लोग काम करते हैं Okay. for Dolby surround and all. So that I have Genelex for that. Okay. So 7.1 is all Genelex. 7.1 is all So the Genelex. sub is also Genelex. Oh, okay. And my near field are ATC. Then I So ATC is how many inches? 8 inches. 8 inches. 8 inches. And the Genelec which are like Genelec is also surrounds के 8 inches है. Okay. And the left, center and rights are Okay. I forgot 1238A I think. That's three-way Okay, systems okay. for the left, center and right. Right, And for all right. my rears and surround, there Right. are 8 inches Oh, monitors Okay. Okay. and a These are subwoofer. all well calibrated. Well calibrated Okay. because Genelec has this thing called GLM. SAM monitors है जो खुद को calibrate कर लेते हैं. Right. You need a mic and a software. Right. बहुत So they easy get है. a calibration mic. हाँ GLM Sweet किट spot आता पे है रख या के, आप okay. जो जहाँ पे बैठना है मतलब यू कैन डू मल्टीपल स्वीट स्पॉट्स है. मतलब एक इंजीनियर स्वीट स्पॉट होता है. अगर आपके पीछे एक क्लाइंट बैठा है तो वहाँ का स्वीट स्पॉट बनाना तो वहाँ पे भी एक कर सकते I हैं. think there's also one general software for the same. I think it's called a Sonic करके है. Sonar works. Sonar works, Right. yes. They also have a microphone. हाँ बट उसके अंदर क्या है वो कैलिब्रेट करके वो कुछ प्लग इन बना देते हैं विच हैव टू पुट इट इन योर मास्टर. Yes. हाँ तो Yes. फिर वो उस हिसाब से कैलिब्रेट तो करेगा. फिर
उसमें भी presets है. हाँ. Like you want a one particular setting, then you do put this in the master. और वो preset तुम select करो कि let's say for example client basis के लिए अगर तुमको sweet spot पे करना है तो ये preset तो select चेंज करो हो and then जाएगा, play it वो that. चेंज हो जाएगा. Right. But there is also उसी का Windows का output वाला, what do you call it यार, fuck I forgot. Do you know voice over bananas? No. Okay, do you know Penguin? नहीं. Okay, this is like Windows audio का external output वाले. अच्छा अच्छा. So DAW के through जो भी directly तुम्हारे sound card पे जाता है ना, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो. ओके. So sound card का अगर जैसे Motu है मेरे पास, तो अगर Motu का जो भी सॉफ्टवेयर है, I can select over there कि इसका input चाहिए, and then वो Motu हाँ में हाँ जाना हाँ. चाहिए. ओके, सो आई अंडरस्टैंड. मतलब आपको DAW में वो Sonic का सॉफ्टवेयर डॉ में नहीं करना है, आप एक थर्ड पार्टी एक आईओ right. जैसा है. ओके ओके. वो वैसा वाला भी है, recent हाँ. only. So people can use that if they want to do calibration of their right. I'm just asking in that way कि वो भी नहीं same वो result आएगा, नहीं नहीं or आई what डोंट you नो. have आई हैवंट Okay. यूज्ड इट बिकॉज सुन नहीं सकते तब तक बोल नहीं सकते कि भाई अच्छा. वैसा रिजल्ट देगा. Mm-hmm. In my studio, it is sounding as I want to sound. Now, if I'm doing it over here, I have to manually do it and listen. कान भी चाहिए सुनने के लिए कि भाई सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. Correct, correct, correct. ठीक है. यूट्यूब पे देख के नहीं कर सकते. Right. कुछ लोग करते हैं कि भाई यूट्यूब पे करते पूरा हैं. बता दिया ऐसे ऐसा होता है, लेकिन वो करना तो आपको खुद ही है. और जब तक आपको भी एक नॉलेज होना चाहिए कि भाई एक पर्टिकुलर ट्रैक बाहर कैसे साउंड कर रहा है और मेरे स्टूडियो में कैसे साउंड कर रहा है Correct, और कितना डिफरेंस है. right. तो वो थोड़ा एक इंस्टिंक्ट और एक थोड़ा कैलकुलेटिव जो होता है ना वो कि होना इतना चाहिए, इतना instinct डिप होना करना है, इतना ये करना है, Right. उतना वो आपको थोड़ा आना चाहिए. उसके पीछे टेक्निकल थोड़ा रहना चाहिए. चाहिए. I think many people just eradicate the fact that standing waves are the issues in a particular studio in such a way that controlling them becomes a huge task. क्योंकि चलो few frequencies you can just cancel out with the डिफ्यूजर. हो गए या फिर absorber panels वगैरह हो गए. But then completely thinking कि cloud की ज़रूरत ही नहीं है and flooring को कुछ change करने की ज़रूरत ही नहीं है, I think then that is eradicating everything because sound waves are like powerful and there are going to be certain standing waves which are going to be issue या because तुम इधर बैठे हो same sound और ऐसे हो गए तो you're going to feel a different आ way. जाएगा. हाँ आता So है. to solve that you need to understand कि treating your studio is so important. So what you have done in investing in making sure that your sweet spot is the perfect flat frequency response that you get. You are asking me the whole this Yeah, one? name the treatment that you have done. So It treatment eradicates is- all these things. हाँ होता है. Okay. मतलब अगर आपका बजट प्रॉपर है एंड इफ यू Hmm. आर हायरिंग द राइट गाइस, दे विल गिव यू द गुड सजेशंस. मतलब जो Hmm. प्रॉपर सजेशंस है और जो Hmm. मटेरियल्स और जो Hmm. यूज़ होता है वो प्रॉपरली आप लगाएंगे. Hmm. एंड द डिज़ाइनिंग ऑफ हाउ योर रूम इज़, Hmm. मतलब कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए Hmm. एंड कुछ भी सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए. Hmm. एसिमेट्रिकल होगा तो बहुत Correct, ही correct. ईजी होता है साउंड्स को डिफ्लेक्ट करने और डिफ्यूज़र को कैच करने के लिए Hmm. और डिस्पर्स करने के लिए साउंड को. Right. Right. और फिर जो आपके ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल्स हैं, जो आपके वॉल्स है, आपकी सीलिंग्स है, वो ऑब्जॉर्ब कर ही लेंगे. अगर सिमेट्रिकल है तो वो जाएगा ही नहीं, वो घूमता ही रहेगा. करेक्ट. एंटीलोप में कितना आईओ क्या है उसका, मतलब हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स डू यू हैव इन एंटीलोप? इट्स 64 in 64 out, ओके एनालॉग एंड एडेट ओके इंक्लूडिंग. Oh, मतलब okay. मैं 64 माइक इन्स कर सकता हूँ और उसको 64 आउट्स दे सकता हूँ. एंड you have some external processes like analog I have processing? external outboard, analog outboard. I have EQs from SSL, solid state, Logic. फिर मेरे पास tube equalizers है from Crane Song Insignia. I have a Neve compressor. I have SPL transient designers which you can find it सॉफ्टवेयर में बहुत मिलता है. SPL कंपनी का ट्रांजिएंट डिजाइनर्स आता है. It designs transients. You can release attack के साथ अच्छा. That I use it for my तबला ढोलक. I use it kilohertz का ट्रांजिएंट शेपर है मेरे पास. हाँ वही बस वही उसका एनालॉग वर्जन. Analog thing. Which is actual hardware rack. Actual hardware. These are I have two of each, so I can do left and right channels separately.
फिर आई हैव अ शैडो हिल्स मास्टरिंग कंप्रेसर, Okay. Manly Verimue Okay. compressor. These are all my EQs, and okay, I have a Bricasti M7 which is a analog reverb unit. Okay. उसका एक प्लगइन वर्जन भी है उसी कंपनी का, यू कैन फाइंड इट, मिल जाएगा. एंड देन आई हैव pre amplifiers for my microphones. I have a Manly Voxbox, a Manly Force, which is a 4-channel. Manly Voxbox it is like a channel strip जैसा है. Okay. उसके अंदर DSR है, EQ है, Okay. हाँ, lots of things along with the So, preamp. तुम्हारा vocal chain उसमें से ही होते जाता है. Yeah. And then I have another preamp which I use it for my drums. Okay. मतलब 8 चैनल का है. That is this thing, क्या नाम है उसका, बेबी फेस प्रो. कौन सा कंपनी का है? Babyface. बेबी फेस प्रो, जो नाम भूल गया यार. Thresholds. नहीं, बेबी फेस प्रो जो ऑडियो है ना, देखते हैं ना. RME कंपनी का ऑक्टामाइक. Octamic. So it is an 8 channel preamp Okay. which I use it for my drums and all. मतलब डिपेंडिंग ड्रम का भी किक का कैसे साउंड चाहिए, तो समटाइम इट्स गोज टू माई ट्यूब प्रीएम्प्स. मैनली का जो है उसके अंदर से भी जाता है. दिस इज़ ऑल आई हैव इन माई आउटबोर्ड. और माइक्रोफोन्स के अंदर आई हैव वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोफोन्स. आई हैव अ स्टीरियो पेयर ऑफ U87. Okay. मतलब 2 सेम माइक्रोफोन्स एक के बाद एक मैन्युफैक्चर हुए हैं. ओनली द सीरियल नंबर में एक नंबर का डिफरेंस है. Okay. सो यू व्हेन यू आर डूइंग अ स्टीरियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल, वो आपका कभी भी चेंज नहीं हो, मतलब माइन्यूट भी, क्योंकि वो एक के बाद बने हुए हैं Right, स्टीरियो right. के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियो पेयर्स. फिर आई हैव अ मैनली ट्यूब माइक्रोफोन Neumann M149 which is widely used by all the singers, good singers. AKG का I have C414 XLS. Okay. I have a Royer ribbon mic. उसके बाद उसके बाद तो फिर बेसिक जो अपने श्योर के SM57 SM58 है, दैट वी यूज फॉर परकशंस एंड ऑल एवरीथिंग. रोड के कोई है मैक्स? रोड के माइक्स नहीं है. रोड का मेरे पास रोड इज़ वेरी नॉट अननेसेसरी. बिकता है तो काम का है, बट इट इज़ फॉर होम स्टूडियो प्रोड्यूसर्स एंड उनका है. माई स्टूडियो मतलब मुझे जो बनाना था, इट हैज़ टू बी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. तो आई गॉट द माइक्स वैसे ही कि भाई माइक्स भी स्टूडियो के जो बॉम्बे के अंदर जो होते हैं वही माइक्स होने चाहिए. आई कुड हैव गॉटन अ रोड और एनी अदर माइक, बट माइक्स भी वो स्टैंडर्ड के होने जो स्टैंडर्ड का स्टूडियो है. रोड इज़ नॉट बैड यार. पता चले कि कमेंट कर दे कि एक्सक्यूज मी. अरे नहीं, बड़े बड़े आर्टिस्ट रोड यूज़ करते हैं यार, वो बताएंगे थोड़ी. नहीं, बट ओवरऑल जो भी तुमने चूज किया है, दिस इज लाइक योर पर्सनल रिसर्च एंड योर मेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस. नाउ बहुत लेमन टर्म्स में, बिकॉज बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देखेंगे, they are from DJing background, they are from just music production, sitting in the bedroom वाला room वाला studio. ये जो artist है, ठीक है, now these are mainly 90% of my followers, so I know I can pretend, I can basically analyze and think कि ठीक है ऐसे लोग ये देखने वाले. I know from their perspective, because these are the questions which I get from my students as well. These are the questions which I also used to have before. कि मैं एक कंप्यूटर खरीद के उसके अंदर कंप्रेसर है, उसके अंदर ही मुझे लेट्स से साइड चेनिंग करने को हो रहा है, उसके अंदर ही सैचुरेटर है. Why the hell will I go out and buy a compressor worth 2 lakh rupees as an external analog, put it over there? Why would मेरे को तो वही सेम चीज मिल रही है सॉफ्टवेयर क्रैक करके, या फिर फिल्टर का कुछ तो क्रैक वर्जन उठा के आई एम जस्ट यूजिंग दैट लिमिटर और सैचुरेटर और कंप्रेसर. व्हाई विल आई गो अहेड spend 2 lakh rupees on a hardware which is doing the same thing what a software is doing? Explain this in your way कि what exactly is that benefit for spending that much amount? See, I'll ask you a question. सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्रेसर, बट
हाँ ठीक है, मतलब I'll मैं act- ऑडियंस के हिसाब से हाँ ठीक है, कि सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्रेसर का आइडिया आया कहाँ से? सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्रेसर डालने का आइडिया कहाँ से आया? टू कंट्रोल द डायनामिक्स। नहीं क्यों कंप्रेसर होना चाहिए, क्यों इक्वलाइजर हो? सिर्फ रिकॉर्डिंग ही कर सकते थे ना। हाँ मतलब तो डायनामिक्स ही कंट्रोल कर रहे हैं आप टेक्निकली, बट वो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू है। नहीं हाँ। सी आई एम यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ रिकॉर्डिंग ही कर सकते थे ना। डायनामिक्स मतलब जो पहले के टाइम में जो 60s 70s से जब ये इक्विपमेंट बनते आ रहे थे तो एवरीथिंग वाज डन मैन्युअली, एनालॉग। करेक्ट तब कंप्यूटर्स नहीं थे, तब यही मशीन्स जो आप आज बीटल्स, क्वीन, जो आप बैंड्स के सब ऑडियो सुन रहे हो, ये सब वही पे यही मशीन्स के ऊपर बने हुए हैं। तब कंप्यूटर्स नहीं थे, तब इन्हीं को यूज़ करके फिर आपके जो और मिक्सिंग बोर्ड है टेप में रिकॉर्ड करके फिर उसको यूज़ किया जाता था। फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, मैग्नेटिक टेप, या कैसेट्स वाली जो होती थी। हाँ। फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से बहुत सारे काम होने लगे। किसी बंदे ने सोचा कि कंप्यूटर से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो उसने कुछ रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाया होगा, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाया होगा तो शायद उसने बोला होगा कि यार ये कंप्रेसर को मैं कैसे यूज़ करूँ इसके अंदर, तो उसने वही एल्गोरिथम लेके उसको प्रोग्राम करके बनाया, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, उसके अंदर बनाया। करेक्ट, समझ गया। लेकिन ये है डिजिटल, 1 और 0 से चलता है, समझ गया। और ये है एनालॉग, ये सर्किट्स और वेव्स से चलता है, साउंड सिग्नल और वेव्स से चलता है। यहाँ का जो रिजल्ट है वो यहाँ से नहीं मिलेगा। ये जो है आपने बोला अभी जस्ट, हाँ, दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल। क्यों नहीं, जस्ट एक्सप्लेन इन दैट। अब जो ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो आप ये रिलेट कर सकते हैं 15-20 साल पहले। ओके। अब जो प्लगइन्स मॉडल्ड हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ मॉडल्ड हो रहे हैं, द डिफरेंस हैज बिकम वेरी लेस ऑफ द रिजल्ट। आज के टाइम पे शायद ये आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, बट जस्ट बिकॉज आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन मुझे ये समझाना पड़ रहा है। बिकॉज जो प्लगइन्स आज मॉडल हो रहे हैं, जो कंपनीज है, वेव्स कर रही है, प्लगइन अलायंस कर रही है, यूएडी कर रही है। Are you trying to say कि digital is going more closer towards the analog result? Yes, जा रहा है। Like मतलब इट्स गोइंग। पहले पर्पल और ब्लू अलग दिखता था, लेकिन हाँ, अभी वो इतने क्लोज आ गए कि लेकिन वो indistinguished। हाँ, नहीं कर सकते हैं अ गुड ईयर कर सकते हाँ हैं, हाँ, बट comparatively to 20 years to now, yes, now it's very close। हाँ हो But if सकता you है। have good years, then इफ यू आर गुड ईयर्स यू कैन मेक श्योर कि भाई होता ये है। भाई इन द Yes. बॉक्स किया हुआ है Yes. और ये एनालॉग किया हुआ है, Yes. ठीक है। So basically, you're spending lakhs of rupees just for that difference. Flavor. For that flavor. यस, Yeah. बिकॉज व्हेन आई एम, अगर मैंने एक पाथ ले लिया है, Hmm. ठीक है, मुझे वो पाथ के अंदर जो जो चीज़ की ज़रूरत है मुझे वो लेनी पड़ेगी। Hmm. आई कुड हैव गॉन फॉर अ simple budget studios, I could have got plugins and ये वो, Hmm. but just because I wanted to set up, I had that vision, I wanted to buy those equipments, Hmm. so and ये equipments को आज की तारीख में भी यूज़ करने वाले बंदे हैं Hmm. जिनको इनका फ्लेवर अच्छा लगता है। Right. So That what- might not be your students or your audience, Right, of course. बट बाकी दुनिया तो करती है, Right. जिनको पता है कि ये क्वालिटी इसमें से ही मिलेगी, ये मिलेगी, इन द right. बॉक्स के कोई प्लगइन में से नहीं मिलेगी। Because ये confusion होता है कि अगर मेरे पास स्टूडियो होगा तो अरे ये तो इक्विपमेंट लगेगा, I have seen it in every, but नहीं that doesn't have to be. it doesn't have to be. You can make a career out of the whole. हाँ, see, crack software also if you wish. even today, if I am doing a project, if I am mixing and mastering, until and unless I find the need to tweak and use that analog piece of hardware into my mix, I will only use it then. नहीं तो मैं भी इन द बॉक्स ही करूँगा, Correct. क्योंकि वो भी अच्छे स्टॉक प्लगइन्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन With a मुझे good- कुछ अगर फ्लेवर चाहिए कि ये मिक्स को इसकी ज़रूरत है, Right. तो मैं उसको पैच करूँगा। With a good sample rate is what I was going to यस, say. तो बट वो कान भी चाहिए, प्लस आपका इक्विपमेंट जो बेसिकली आपका स्पीकर है, मॉनिटर है, उसमें भी वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो उतने सैंपल रेट को ले सके, रिक्रिएट कर भी पा रहा है। यस, दिस इज व्हाट पीपल गेट वेरी डिसओरिएंटेड अबाउट। दे थिंक दैट मेकिंग रूम, अकॉस्टिकल ट्रीटमेंट, लाखों रुपए खर्चे किए
अकोस्टिकल ट्रीटमेंट दिया, लेकिन कुछ तो ऐसे नॉर्मल KRK यूज, नॉट KRK इज नॉट वेरी Hmm. नॉर्मल, बट KRK यूज किया बेसिकली. दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग. व्हाट आई फील इज देयर इज अ ट्रायंगल व्हिच नीड्स टू बी बैलेंस्ड. आपके कान भी सही होने चाहिए, आपका अकोस्टिकल ट्रीटमेंट भी सही होना आपका चाहिए, मशीन भी सही होना आपका चाहिए. मशीन भी तो सही होना चाहिए, बट साउंड के हिसाब से देखा जाए तो आपका मॉनिटर होना चाहिए. मतलब 3 ट्रायंगल्स इज दिस. हाँ. इफ उसमें से एक भी चीज खराब है, you have good monitors but bad room is going to imbalance things. So यही क्वेश्चन जानने के लिए, समझने के लिए मैंने ये पूछा था कि why do you need hardware? Mainly is for flavors, but again you will not understand flavors if your ears are not properly हाँ. trained. मतलब आपको ये यूज़ करने के लिए उसका मोटिव चाहिए. मैं क्यों यूज़ करता हूँ, Right. मुझे ये फ्लेवर लाना है. तो फ्लेवर आपको चखोगे कैसे? किसी कहीं पे खाना खाया होगा Right. तो फ्लेवर चखोगे कि यहाँ पे वो होटल के अंदर ये सब्जी बहुत अच्छी मिल रही थी, हाँ. मुझे घर पे भी वो same बनानी सब्जी है, इधर- कैसे हाँ, आएगी? right, तो right. वैसे आएगी. तो उसके लिए आपको बहुत सुनना पड़ेगा. Yes. बहुत कुछ, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक जॉनर ही सुनना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ मल्टीपल जॉनर सुनने पड़ेंगे आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जो आपको शायद अच्छे ना लगे लेकिन वो आपके ईयर्स ट्रेन करेंगे. This is also one of the reasons why people really prefer, मतलब I have also observed it, even I prefer it, listening to Red Chili Peppers के band के mixed tracks, good mixed tracks. गुड मिक्स. They're like selective, जैसे Hotel California is like very cleanly recorded, but in a very warm tone. मतलब वो होटल कैलिफोर्निया इज ईगल्स. नहीं, रेड चिली पेपर्स का और एक ट्रैक है. होटल कैलिफोर्निया आई नो ईगल्स का है, बट देन रेड चिली पेपर्स का और एक ट्रैक है. कैलिफोर्निकेशन किसका है? मैं इतना नहीं सुना है. कैलिफोर्निकेशन. नो आइडिया. ओके, दैट इज सुपर अच्छा. नाइसली मिक्स्ड. लाइक आपको पता चलेगा कि आपके स्पीकर्स की कैपेबिलिटी क्या है. इट्स दैट काइंड ऑफ. एंड आई हैव seen multiple sound engineers using these songs just as a reference. बहुत करते हैं. सी इफ मैं भी करता हूँ, आई हैव सर्टन ट्रैक्स विच आई हैव बीन लिसनिंग टू, मतलब 10-15 साल से वो बैठ गए, अच्छा. लेवल्स बैठ गए कि इसका लो एंड इतना ही बाहर निकलता है, क्योंकि yes. वो सॉन्ग मैंने इतने प्लेबैक डिवाइसेस पे, इतने स्पीकर्स पे सुना है बहुत कि मुझे सुना है. पता चल जाता है माइनर डिफरेंसेस. सो वेन एवर देर इज़ अ चेंज इन रूम, सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो रेफरेंस लेवल्स आपके कान में है. अगर कोई अच्छे रूम में जाएंगे ना तो नियर बाई वो आएंगे रेफरेंस लेवल्स. ऑफ कोर्स. ठीक है. अगर वो रूम अच्छा नहीं है ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये अगर वो सॉन्ग आपने लाखों बार सुना है ना, तो उसको पता है कि भाई अगर ये अच्छे से अच्छे स्पीकर में भी है तो उसका बेस इतने से बाहर नहीं आएगा, इतने लेवल से बाहर उसका टॉप एंड नहीं आएगा, इसका बेस बाहर नहीं है, इसका जो वोकल्स है वो इतना ही पॉप आउट होगा. अगर रूम करेक्ट नहीं है ना तो वो गाना गलत बजेगा. तो दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट टू चेक वेदर अ रूम इज गुड और नॉट. A lot of I think most of the engineers do it. Yes. कि they have this reference track. एक होता है सब गाने, मेरा भी एक गाना है जो अगर मुझे कहीं पे सुनना है, अगर मुझे यहाँ पे सुनना है, मैं सुन के बताऊँगा भाई कहाँ कम ज़्यादा कुछ है, कुछ चेंजेस है रूम के अंदर जो मुझे शायद दूसरी जगह सुनने मिले. कई हेडफोन्स है, कुछ भी, कोई भी प्लेबैक डिवाइसेस हो. So you have a song like that. हाँ. मतलब आपको एटलीस्ट एक प्लेलिस्ट तो पता है कि मेरे को पता है ये गाने में, मतलब एक नहीं है, दो है, मतलब अलग अलग जॉनर्स के है, या अलग-अलग genres एक डांस का है, एक क्लासिकल का है, एक ऐसा करके है. So basically coming back and understanding, investing in these kind of hardware is all about flavor. And is it यार वो क्या बोलते हैं कुछ तो एक टाइप का ऑडियोफिल. यस, यू नीड टू बी एन ऑडियोफाइल. हाँ, मतलब ऑडियोफाइल मतलब आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा. तो आप ऐसे बोलते हैं ना कि अगर इफ कोई आपसे पूछे कि भाई मैं कौन सी कार लूँ, इसका मतलब है आपने बहुत सारी कार्स चलाई ही है. आपको पता है किसका इंजन कैसे काम चलता है, किसका क्लच कैसे कितना दबेगा, किसका गियर बॉक्स कितना स्मूथ है. ऐसे ही यहाँ पे है. ठीक है. अगर आपने बहुत कुछ सुना है ना और आप टेक्निकली हो साउंड के अंदर, तो आपको पता है कि ये कौन से गियर से अचीव होगा, ये कहाँ से रिजल्ट निकलेगा, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा. मतलब ऐसा नहीं है कि लेने के लिए ले लिया, उसका फ्लेवर भी कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे प्रीसेट्स नहीं होते हैं.
every time you have to move the knob हाँ एवरी accordingly. टाइम मतलब चेक करके इतना 19-20 करके चेक करो, वेट ड्राई वेट ऑन ऑफ करके आपको वो फ्लेवर लाना देखना है. पड़ेगा. हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि शायद एक मिसकंसेप्शन होगा कि भाई ऑडियो हार्डवेयर यूनिट लिया प्लग इन किया तो मतलब आपका हो गया. नहीं ऐसा थोड़ी होगा. हाँ नहीं ऐसा नहीं, उसको ट्वीक करना होता है, वो मैन्युअली करना होता है. प्लग इन जैसा नहीं है कि भाई बेस के अंदर कौन से प्रीसेट है, लो बूस्ट है, मिड मड क्लियर है, वो मड क्लियर आपको वहाँ पे मैन्युअली करना पड़ेगा. हाँ बैठ के हाँ पता चले कि बस ऑन हो जाए clear हाँ हो ऐसा जाए, नहीं होता. थोड़ी होगा. मतलब उसको भी बहुत यूज़ करना पड़ता है. तो वो आपके हाथ में आता है. Right. से बोलते हैं ना कि एक आपने 2 व्हीलर ली है, ठीक है, अब उतना उसको जितना चलाओगे आप उतना बैलेंस कर पाओगे उसको. ये भी ऐसे ही है, Same. ऐसा ही है ये. So, purely talking about your feelings right now, जब आपको पता है जब आपने नई कार ली है, कार लेते टाइम आपने देखा हुआ कि इसमें ये फंक्शन है, उसमें वो फंक्शन है, अच्छा इसके एसी में हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ है. जब आपके पास वो कार एक्चुअल में आ जाती है और आप चला रहे हो, तो आपके अंदर का एक थोड़ा सा एक चाइल्ड होता है ना जो मजे लेता है इन बटन्स का, वो फंक्शंस का, राइट? एज अ साउंड इंजीनियर, how do you feel when you're actually operating these hardware? एक बच्चा खिलौने के साथ खेलता है ना वैसा. So how exactly do you go through these flavors of joy? Like कौन से लेवल पे you feel मतलब euphoric? it is satisfaction. मतलब another level. another right? level. मतलब एक बच्चे को अगर उसका पसंदीदा खिलौना मिल जाए तो उसके साथ मतलब खेलेगा जब तक वो थक नहीं जाता उससे. बच्चे का है दिमाग आज 2 साल बाद शायद, अभी अपन तो इतने साल से साउंड कर रहे हैं, हाँ. तो वो तो यार एक पैशन है ही वो जुड़ा हुआ, Correct. तो वो तो कभी मरने वाला नहीं ये है. कीड़ा है ना मेरे में भी है. हाँ. ठीक है. अब फंड्स नहीं वो अलग बात है. बट कितने देर तक मैं क्लिक खेलते बैठा. I also want to this looks bad but I also want to twist buttons and knobs and this and we're actually making a difference. Because of which like I have certain hardware, then I'm linking to sound design. मतलब सेरम को बहुत सारे buttons and knobs and faders link किए हैं, then I'm just designing it. वो जो मजा आता है ना उस चीज में, वो माउस क्लिकिंग नहीं है. वो नहीं आएगा, वो फन नहीं आएगा बेसिकली. So I'm pretty sure you're enjoying to the highest being an audiophile. Exactly. Okay, all right. So this was all about your studio. Now let's go a little bit towards more emotional tone and a bit of psychological tone. Okay. Now 2025. What do you genuinely feel and think? You can say psychologically also about the latest generation who is trying to come into making music or trying to become a sound engineer. What do you genuinely feel right now, which is a beneficial part but also a dark side to it? मतलब तुमको क्या लगता है कि उनको क्या एडवाइस की सच में मन से जरूरत है, जो आपको चिल्ला के बताना है कि मूर्खों सुनो, ये हरकतें मत करो. If you're really going into this field, make sure that you respect this part. Yeah. तो what is that tone? See, आज की जनरेशन के पास गोल्ड माइने रिसोर्सेज की, Yes. जो शायद आपके पास और मेरे पास नहीं थे. 15 नहीं, कितने 20 साल पहले, 20 साल पहले. दे हैव अ गोल्ड माइन ऑफ रिसोर्सेज, बट इनके ख्याल है ना दिन ब दिन चेंज होते हैं. रात को कुछ और सपना आया, सुबह उठ के कुछ और Is this your personal experience somewhere? होता है, दिखता है, पता चल जाता है, बताते नहीं है. तो क्योंकि इट इज़ एन एवर चेंजिंग दिस थिंग. आज इतने सारा पर्सपेक्टिव काम का खुल गया है. देयर इज लॉट्स ऑफ न्यू जॉब्स विच आर कमिंग आउट. तो उनका जो है ना क्या बोलते, ध्यान एक जगह रखना चाहिए. सीरियसली कुछ करना है कि भाई यही करना है तो फिर थोड़ा टाइम दो उसके पीछे. नहीं कि भाई 7 दिन 10 दिन किया, मज़ा नहीं आया तो कुछ और करते, क्योंकि और कुछ मिल जाएगा उसको. ऐसा नहीं कि खाली बैठेगा. कुछ अगर उससे ज़्यादा कुछ और अट्रैक्ट कर रहा है ना उसको, तो वो चला जाएगा उसके पास. वो सीरियसनेस नहीं है. वो शायद ऐसे बोल सकते हैं कि ये इसका ना हुआ तो उसका भी नहीं होगा. शायद उसको कोई तीसरी चीज़ मिल गई तो वह वहाँ पे भी चला जाएगा. हाँ. Like वो concentration focus रख ही नहीं पा रहा है. Yes. Is this, sorry to cut you over there, is this a result of
fast entertainment on 100%. एक लेमन बंदा अगर इंस्टाग्राम के रील्स चेक कर रहा है, उसको अगर 5 to 7 सेकेंड्स में एंगेजिंग नहीं मिला, मज़ा नहीं मिला, Scroll. Right. And this is also getting reflected to their career or passion or whatever. डेली लाइफ के अंदर भी ये हो रहा है. इसमें मजा नहीं है, I'm getting bored, change it. नेक्स्ट चेंज करो. How do they tackle it? How should they tackle it? Being around so much of distractions, how do you think they can tackle it? To You become a need good to music get a producer or sense whatever. of discipline. How? If I ask. बहुत सारी चीज़ें हैं डिसिप्लिन लाने के लिए. एक माइंडसेट. Let's say your wait, you have a daughter. I have a daughter. Oh yes. Wow. Wait. Good. Let's say your daughter has fallen into this pit of not getting into one decision and kind of being a shikar of this distractive mind. How will you train her or guide her to make sure कि भाई वो ट्रैक पे आ जाए और उसको समझे कि एंटरटेनमेंट की चीज़ मतलब एंटरटेनमेंट, फोकस मतलब फोकस. See that seriousness एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, एक एज के बाद उनके अंदर भी आ जाती है. Okay. It's just that they are not tapping into it. Right. वो सीरियसनेस होती है, Right. सबके अंदर होती है. उसको टैप करना पड़ता है कि अभी मुझे ये चीज़ भूल जानी है या अभी मुझे ये डायरेक्शन नहीं यूज़ करना है. वो ग्रूमिंग बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए. I think. मतलब आई एम अ पेरेंट, मतलब पेरेंटिंग के बारे में तो लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मतलब आई एम अ वेरी यंग पेरेंट. माई डॉटर इज़ जस्ट 6 राइट नाउ, बट मैं उसको 10 साल बाद कैसे देखूँगा वो मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ. Right. धीरे धीरे, Right. यू नो. आज के ज़माने में बच्चे लोग दे आर प्लेइंग डिजिटली. I'll say this term, they are playing digitally. They are not playing outside as what we used to do. ठीक है. Right. So Under the roof. हाँ. So I make sure I'm taking her outside. Okay. You know, उसको एक्टिविटीज़ करवाओ. बाहर की दुनिया देखेंगे तो जिम्मेदारी समझेंगे. जब तक अपने रूम के अंदर स्क्रॉल करते रहेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा, वो टैप नहीं कर पाएंगे ये चीज़. बाहर मिलेंगे, देखेंगे दुनिया कैसे चलती है. ऑल्दो दे आर वेरी नाइव राइट नाउ, बट अगर कोई एक छोटा सा भी एक बोलते चीटिंग होता है ना कि 1 रुपया ज़्यादा दे लिया, 2 रुपया ज़्यादा ले लिया, तो उनको पता चलेगा कि भाई चीटिंग हुआ है. बाहर लेके जाओ, दुनिया एक्सप्लोर कराओ. माई डॉटर शी इज़ इनटू स्विमिंग, शी इज़ इनटू स्केटिंग, डूइंग अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. तो बाहर जाएंगे, दूसरे लोग से मिलेंगे, तो उनको पता चलेगा कि इसके बाहर भी दुनिया है. क्योंकि कोविड के टाइम से क्या हुआ है, सबको घर में बैठ के काम करना है, सबको घर में बैठ के काम है. ठीक है, वो एक क्या बोल सकते हैं, एक सेटिस्फैक्शन है किसी के लिए जिसका वर्किंग आवर्स बहुत ख़राब है, जिसका कॉर्पोरेट लाइफ बहुत ख़राब है, उसके लिए ठीक है. लेकिन सबके लिए ये अच्छा नहीं है. स्पेशली फॉर म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स, engineers who are sitting in a room and constantly working. See, it gives a satisfaction. वो अलग चीज़ है, लेकिन psychologically वो इफ़ेक्ट करती है. I think we burn off very quickly if you don't get in touch with the real world quickly. Like मैं 12 घंटे ना काम किया है यही इसी स्टूडियो में without realizing कि 12 घंटे हुए. Same But with in me. next 4 days I don't know how to function as a normal human being. I am getting anxietic. बाहर जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, I am feeling different. मतलब कोई है क्या नहीं है, क्योंकि वो environment तुमको ऐसे बना देता है तो you stay in that bubble. It is important to take a break, go out, go away from the PC basically, meet people, friends and whatever, touch the grass and stuff like that, and come back. Basically have a balance between the real natural world. Exactly. Abhi recently, before coming to Pune, I was doing a Garba project. I was recording rhythms. Okay. So the session started at 8 o'clock in the morning and it ended till 5. 8 बजे से 5 बजे तक सेशन चला. एंड 8 बजे से जो स्टार्ट हुआ माइकिंग एंड ऑल, फिर यू चेंज इंस्ट्रूमेंट्स, यू कीप ऑन लिसनिंग टू दैट ड्रम्स एंड ऑल, एंड ईयर फटीक होते 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 5 बजे
मतलब उसके बाद मेरा एक और शेड्यूल था फॉर वोकल रिकॉर्डिंग, वेरी सिंपल, सिर्फ वोकल रिकॉर्ड करना था. 5 बजे सब ख़त्म हुआ. द क्लाइंट हैड ऑलरेडी कम, ही वॉज इन द वेटिंग एरिया. वो आया, बैठा, मैंने बोला क्लाइंट जो है नितेश भाई, मैंने बोला 1 घंटा के बाद स्टार्ट करेंगे, मुझे थोड़ा ये प्रोजेक्ट में से बाहर निकल जाने दो, क्योंकि वो ढोल नगारे अभी भी मेरे कान में बज रहे हैं. अगर वो बजते रहेंगे ना, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाऊँगा. मुझे 1 घंटा चिल करने दो, थोड़ा फ़ोन वोन में देखने दो, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीने दो, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देखने दो, वो ढोल नगारा मेरा दिमाग में से निकल जाने दो. हाँ बोला हमजा भाई, बस मैं भी थोड़ा काम 2-3 निपटा के फिर करते करते उसके साथ बातचीत चल गई. तो व्हेन यू टॉक टू समवन ना, वो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है ना, ये सब फटीग निकलता है. तो आप एक ही जगह बैठ के काम करोगे ना, तो आपको बाहर निकलना तो चाहिए. फिजियोलॉजिकली इट विल हाइंडर यू इन लेटर स्टेजेस. अब लग रहा है अभी प्राइम एज पे है, तो जवानी में है तो ठीक है, हो रहा है काम. ये वंस यू क्रॉस अ सर्टन थ्रेशोल्ड ऑफ योर एज ना, देन यू विल रियलाइज के भाई व्हाट यू मिस्ड आउट. तो जब मैं उसके साथ बातें कर रहा था ना, क्या उसके शोज़ कैसे चल रहे हैं, क्या अभी चल रहा है, आई फेल्ट रिलैक्स्ड. फिर कॉफ़ी पिया, 1-2 कप्स, चलो रिकॉर्ड करते हैं. हाँ, देन यू फ्रेश. तो वहाँ से निकलना भी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि भाई पूरे दिन होना चाहिए. अगर मेरा जैसे 12-12, 16-16 घंटे का शेड्यूल होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम डबिंग अ मूवी के अंदर सेशन इज़ लॉन्ग, बिकॉज वी नीड टू कंप्लीट द ट्रैक. एक टाइम फ्रेम होता है, रिलीज़ होता है, वो रिलीज़ क्रॉस नहीं कर सकते. रिलीज़ के 3 महीने पहले हमको दे देना होता है, तो पोस्ट में जाएगा. तो वो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है. तो उसके टाइम फ्रेम में कन्वर्ट, तो तब घड़ी निकाल के काम करना होता है टेबल पे. तो जब भी वो ख़त्म होता है ना, फिर मतलब 1-2 दिन के लिए तो मैं स्नूज हो जाता हूँ, स्टूडियो जाता ही नहीं. यार दैट हैपेंस विद मी. मतलब मैं 12 घंटे सो रहा हूँ, आई गेट स्कैर्ड कि मेरे क्या हो रहा है मेरे साथ. हाँ, बट आई रियलाइज कि दिस इज माय बॉडी रिकवरिंग द नो स्लीप डेज यू वर हैविंग प्रीवियसली. मतलब वो ऐसा है कि भाई सुबह 8 बजे, 8 से 8 आप काम करो 12 घंटे, फिर आप घर जाओ, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चे के साथ खेलो वेलो, आप 10-12 बजे तक सोओगे. मतलब वो भी तुरंत नहीं सोओगे, सोते सोते नींद आएगी अच्छे से. तो फिर आप वापस से 8 बजे के लिए सेशन के लिए आप 6 बजे उठोगे, यू प्रेप द स्टूडियो फॉर हूज कमिंग. एंड तो वो बहुत कम टाइम मिलता है सोने के लिए भी. मतलब दिस स्लीपिंग थिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग फॉर साउंड इंजीनियर. मतलब इसके अंदर पैशन है, निकलता है, सेटिस्फैक्शन आता है, लेकिन उसके साथ आपकी बॉडी डिटोरिएट भी होती है. तो मेरे जो लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं 10-12 दिन के, मतलब जहाँ पे आप यू हार्डली स्लीप फॉर 6 और 5 आवर्स अ डे, मतलब प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो फिर मैं 2 दिन तो स्टूडियो जाता ही नहीं हूँ. बहुत रेयर केसेस के अंदर अगर कोई अपॉइंटमेंट्स है जिसका मतलब जैसे बोला कि रिलीज़ है या उसको देना है, आगे पास ऑन करना है, तो मैं काम करता हूँ. इवन फॉर माई मिक्स, व्हेन आई एम until and unless I am not in a mood to mix, I will not start a project. Because आपके कान तैयार नहीं है. करेक्ट. कान तैयार नहीं है, आपका माइंडसेट तैयार नहीं है वो मिक्स स्टार्ट करने के लिए. तो आपको जो टोन निकालना है किक में से, बेस में से, वोकल्स में से, वो आएगा ही नहीं. बट इवेंचुअली यू हैव टू अडेप्ट टू वर्किंग फास्ट एज वेल. तो वो ये बीच बीच में बोलता है ना, ट्रिक्स होते हैं कि भाई 1 घंटे के लिए बात कर लो या कुछ माइंड फ्रेश कर लो, बाहर चले जाओ, किसी से बात कर लो. तो ये फटीग निकलता है, वो मूड सेट करता है काम करने के लिए. तो ऐसा भी नहीं है कि भाई मूड में आया तो काम किया. काम तो करना है, लेकिन उसका मूड बनाने के लिए भी उसकी टेक्निक्स होती है. वो आप पर्सनली डेवलप करो. आपका नेचर कैसा है, आपको कैसे चिल करना है, कैसे उसको निकालना है, वो आप खुद कर सकते हो. और एक थ्रेशोल्ड भी तो रखना कि मैं चिल, मतलब चिल ही नहीं. हाँ, फिर ऐसा नहीं कि चल भाई मैं बंद करके सो जाऊँ, कर जाऊँगा. एक डिसिप्लिन उसमें भी चाहिए. डिसिप्लिन तो काम में कोई भी चीज़ के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. Alright, so I wanted to share this with you क्योंकि now that we are talking about isolating yourself and this and that, so this is a story of one of the student who was going to become a student. तो ये story है कि this student, he called me up and he was saying that I am trying to produce music since past 2 years और मैं
बहुत सारे लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज देखा हो, एफ्रोजैक हो गया उसका देखा, डेविड गुएटा का देखा, AR रहमान के इंटरव्यूज देखे, सब लोगों ने एक चीज कॉमनली बताई कि वी आइसोलेट आवरसेल्फ एंड सिट इन द स्टूडियो एंड दिस एंड दैट। मैं भी बहुत खुद को आइसोलेट करता हूँ लेकिन कुछ आता ही नहीं है अंदर से। And what I thought that he took this idea of isolating yourself very wrongly. He took that at a very early period of that Yeah. time. मतलब I think before getting isolated you should really understand कि I am ready to do something. Yes. Then I will isolate myself. Isolate कब होंगे जब आपके दिमाग के अंदर आइडियाज है. हाँ. Isolate मतलब sitting in front of your PC and isolating from the world and making sure that you are only with you and your equipments. Okay. And then you're working. फिजिकली जरूरत नहीं है, मेंटली हो सकता है. हो सकता है. But you took it literally. हाँ तो गलत बात है ना. हाँ, वो चीज मेरे को समझाने में उसको मुश्किल गया कि बेटा आइसोलेशन मतलब ये नहीं है कि उसको लेके बैठ जाओ. हाँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा 12 घंटे नहीं के बाद, भाई, मेरे को नहीं. डिस्टर्ब नहीं, ऐसा थोड़ी होता है ब्रो. लाइक यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू डेवलप, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, दिस इज माय व्यू, यू नीड टू डेवलप अ लिटिल बिट सेल्फ, अ बिट ऑफ सेल्फ कल्चर और सेल्फ धर्म. मेरे को ऐसा लगता है कि खुद के अराउंड, खुद के और खुद के काम के अराउंड एक धर्म क्रिएट करो. कोई भी हो, धर्म मतलब बेसिकली जस्ट अ प्रोसेस ऑफ डूइंग अ रिचुअल. क्रिएट अ रिचुअल around you and your work. Then only learn how you can be isolated. क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई कल्चर ही नहीं है, कोई भी हो, अगर तुम स्टूडियो में एंटर करते हो, मेरा क्या कल्चर है, इफ आई एम एंटरिंग माई स्टूडियो, इफ आई एम स्विचिंग ऑन माई PC, इफ आई एम स्विचिंग ऑन माई PC टू चेक अ मेल और गेम, बिफोर डूइंग एनीथिंग मेरा पहले FL स्टूडियो खुलेगा. मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट FL स्टूडियो खुलेगा, एक दो ड्रम बीट्स करूंगा या फिर सैंपल्स सुनूंगा, देन आई विल क्लोज माय FL स्टूडियो एंड देन आई विल डू माय एक्स्ट्रा वर्क. दिस इज माय धर्म. ये मेरा कल्चर है बेसिकली, कि आई हैव क्रिएटेड दैट इन माय स्टूडियो, सो अननोइंगली माय मसल मेमोरी डूज दैट ना, कि मैं जाता हूँ स्टूडियो के अंदर, जाता हूँ, ये चीजें होते हैं. एंड आई टेल यू एंड आई किड यू नॉट, 99% ऑफ द टाइम व्हेन आई एम डूइंग दिस आई एक्चुअली मेक मोर सॉन्ग्स. Even though I don't wish to do anything, बस सुबह उठाओ, खाया पिया है कि क्या करना, चलो अभी स्टूडियो तो है तो let's go, let's see what to do, और बस FL स्टूडियो खोला, खट and then suddenly idea sparks. होता है. Because of that one Yes. act of that culture that I have created with my studio. ये नहीं समझता लोगों को. For that you need to imbibe a discipline. जैसे मैंने बोला, पहले बोला, आप धर्म बोल रहे हो, मैं डिसिप्लिन बोल रहा हूँ. Same thing basically. Discipline. I have listened to engineers who work from their home. They don't have a studio. They have set up a studio in their home, just like you do. ठीक है. उनका बेडरूम दूसरे रूम में स्टूडियो सेटअप कर दिया. What they do is, ऐसे नहीं कि उठ के बिना ब्रश किए कॉफ़ी का मग लेके आ गए. They have a discipline. Right. वो बोलते हैं कि जब हम एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो I present myself, I wear clothes, I take a bath as if I'm going for a meeting or I'm going for a studio outside to do my work. जैसे जॉब पे कैसे जाता है, मैं तैयार होके एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाता हूँ. Makes a huge difference. वो डिसिप्लिन अगर आप नहीं लाते हो फिजिकली तो आपके मेंटली थॉट्स खुलेंगे ही नहीं. आप अभी भी बेड पे ही हो, भले आप अपने स्टूडियो पे कॉफ़ी का मग लेके बैठे हो, सुन रहे हो आइडियाज़ यहाँ से, आप अभी भी बेड पे हो. जब तक आप उठ के नहा धो के, बेडरूम स्टूडियोज की बात कर रहा हूँ जिनके पास अभी बात नहीं है, यू मेक इट अ हैबिट. आप उठो, बेडरूम स्टूडियो एज अ एक्चुअल वर्क प्लेस, हाँ, गेट रेडी, वेयर न्यू क्लोथ्स, फिर आप आइसोलेट हो जाओ. फिर आइसोलेट हो जाओ. आएंगे आइडियाज़, क्यों नहीं आएंगे आइडियाज़. अगर आप एक जोन में से दूसरे जोन में शिफ्ट नहीं हो रहे हो तो ट्रांजिशन से आपके, नहीं तो वो बोलते हैं ना क्रिएटिव ब्लॉक, वो वहीं पे रहेगा. वो बॉक्स के बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो क्रिएटिव ब्लॉक निकलेगा और आपको आइडियाज आएंगे. फिर आपको आइसोलेशन भी अच्छा लगेगा, लेकिन वो आइसोलेशन में जाने से पहले यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड. ऐसे ही नहीं कि उठ के चले गए. मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त ये जो पिछले कुछ सालों से बोलते आ रहे हैं कि मेक योर वर्क प्लेस अ फन प्लेस, अभी वो इतना
इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि नाउ इट इज टाइम टू टर्न इट बैक. डोंट बी दैट मच फन आल्सो. दिस इज अ कॉर्पोरेट गिमिक हाँ एग्जैक्टली. टू मेक यू वर्क फ्रॉम होम. मतलब आप बस. वहाँ से क्या बोलते हो उसको, उसका कितना काम निकल पाते हो घर से. घर पे तो आराम है. फील किया रे तो प्लेग्राउंड है. हाँ. मजे करो. हाँ. दिस एंड दैट. इट्स नॉट वर्क. बट आई थिंक वर्कप्लेस इज वर्कप्लेस. इट शुड बी सेक्रेड. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू यहाँ पे ही क्लॉग आउट हो जाता है कि मुझे आइडिया ही नहीं आता है, मुझे मोटिवेशन ही नहीं आता है, मेरे को पीसी खोलने का मन ही नहीं करता है, मेरे को एफएल स्टूडियो खोलना ही नहीं है, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है, अपने असाइनमेंट्स दिए मेरे को करना ही क्योंकि मूड ही नहीं. आई एम लाइक ये ऑल एक्सटर्नल चीज़ है. पहले इंटरनल पे जागो. यू आर नॉट treating your teaching as a proper teaching. You are still thinking कि ये तो I'm just doing this for fun. How the hell you will learn? You won't. Because you will not find fun while learning. While learning, it is supposed to be challenging. Yeah. And challenging is not fun. Challenging will test your patience. Exactly. Year training सबसे hard चीज़ है. मुझे push करना, समझाना. I'm pressing C note. Can you hear the C note? Test it. वो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या दबा रहा हूँ. Take time. हाँ, I'll give you an example. A very good friend of mine, when we were DJs, when we were doing, there's this guy called DJ Shan. He's from Bhopal, now based in Dubai. तब मैं he was like a mentor जैसे, मतलब एज में बड़े थे तो मैं पूछता था, उनके मिक्सेस भी अच्छे थे कि how are you getting all this clean sounds? I am not able to get this clean sounds. ऑल दो स्मॉल एलिमेंट्स. मतलब हमजा मैंने ईयर्स को ट्रेन किए हैं. सब कैसे ट्रेन करते हो? बोला कभी कोई रेस्टोरेंट में जाओ, देन यू आइसोलेट योर ईयर टू वन टेबल विच इज फार अवे फ्रॉम यू. सुनो क्या बात कर रहे हैं. नॉट बिकॉज यू आर स्पाइंग ऑन टू इट, जस्ट वॉन्ट टू गेट दैट फ्रीक्वेंसी, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन करने के कि इतने सारे साउंड आ रहे हैं, मुझे सिर्फ सर्जिकली वही सुनना है. सो बेसिकली राइट नाउ माय फोकस इज लाइक अ लाइट बल्ब. हाँ, मैं उसको लेजर की तरह यस यहाँ पे पॉइंट होगा कि वो टेबल पे क्या बात हो रही है. साउंड आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है तो मतलब तुम नहीं सुन सकते. अगर थोड़ा सा भी साउंड आ रहा है तो ट्राई टू यू नो मेक श्योर एफर्ट लगाओ वहाँ पे. टाइम लगेगा, ऐसे तो नहीं होता. हाँ, यू हैव टू डू अ मल्टीपल, मतलब बहुत बार जाके ऑब्जर्व करो क्या सुन रहा है, कितनी दूर से आ रही है, कौन सी आवाज़ आ रही है. तो फिर जब आप ये काम यहाँ पे लाके करोगे ना तो आपको वो डिस्टर्बेंसेस निकालने में इजी होता है. आपके साउंड ट्रेनिंग, आपकी ईयर ट्रेनिंग बहुत इजी होता है. You know what, now that you said this, I could literally go back and remember. So I was in 10th standard and dad ने मुझे, there's this course called as Alma Mater. Okay, this is all about developing your personal skills and all, personality and all. And I am very like मैं हूँ introvert technically. थोड़ा सा एम्बिवर्ट और इंट्रोवर्ट के इसमें घूमते रहता. और बचपन में तो तुम भूल ही जाओ, लाइक आई कैन नॉट इवन टॉक टू यू. इनफैक्ट मेरी फटती थी कि सब्जी वाले के पास जाके पूछना कि कहाँ. मैं आधा घंटा सोचता था घर पे कि हाउ विल आई आस्क फॉर कहां. मम्मी ने तो भेजा तो आई वाज दैट लेवल ऑफ प्लानिंग करके जाता. फुल प्लानिंग करके. तो मैं वो लेवल के एंजाइटी में था, उतने लेवल का इंट्रोवर्ट था. एंड आई वेंट टू दिस क्लास. दिस वाज ड्यूरिंग 10th स्टैंडर्ड. इट वाज कॉल्ड एज Alma Mater. इन दैट क्लास दे यूज्ड टू स्टार्ट विथ मेडिटेशन, एंड विथ मेडिटेशन, और बीच में एक्टिविटीज होती थी. जो एंड का मेडिटेशन था दैट वाज ऑल अबाउट साइलेंस. ठीक है, कि नाउ ब्रीद इन. सब लोग शांत बैठेंगे, सब लोग ब्रीद इन. रूम बंद है, क्लोज है. ठीक है, एंड इट वाज इन अ बिल्डिंग इन कोरेगांव पार्क. आई रिमेंबर दैट. शांत बैठो, ब्रीदिंग करो एंड जस्ट लिसन फॉर नेक्स्ट 2 minutes. ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, बस जस्ट लिसन फॉर नेक्स्ट 10 minutes. सो 2 minutes. शांत, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी के सांस की भी आवाज नहीं आ रही है. एंड आफ्टर द सेशन पूछेंगे, डिड यू हियर दैट ट्रक, डिड यू हियर दिस. अब जब ये क्वेश्चन पूछने आए ना, नेक्स्ट सेशन से फिर दिमाग में आने लगे, वेट आई हैव टू आल्सो लिसन टू द बर्ड्स. हाँ, सब सुनना है. तो ट्रक कहीं से तो ट्रेन गई है इतने हल्के से डीजे पे आवाज पे. बट also, so because of that I think I also inculcated this skill of listening to small elements around you, around your environment. Yes. Or also while you are dissecting a track, exactly, इसके baseline में distortion कहाँ पे आ रहा है, कौन सा frequency range में आ रहा है. Yes. So I think ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्जिकली कुछ कोई चीज़ को ट्रीट करने के लिए. मतलब अगर कोई साउंड को उसको
रेप्लिकेट भी करना है तो भी ये चीज़ आनी चाहिए, right, क्योंकि कभी कभार प्रोड्यूसर्स छोटे छोटे एलिमेंट्स डाल देते हैं जो साउंड सैम्पल्स में होते ही नहीं है। yeah, yeah. ऐसे क्लिक के साथ ऐसे ऐसे करके डाल देंगे, हाँ। तो आपको ये पता है कि पता नहीं है। किक के ऊपर कुछ डाला है जो मेरे पास नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है, Right. कुछ तो उसने करके दिया है जो मुझे अभी रेप्लिकेट करना है। Right. वो सुनने के लिए वो आपके कान इतने तेज होने चाहिए, वो आता है So मतलब। can we call this an ability of your ears to dissect and isolate just one layer of sound यस, out of 200 layers of sound? मतलब this is like a chef जो एक यस एग्जैक्टली, मतलब एक चम्मच टेस्ट किया, वो बोले नमक है इसमें, ये right, मतलब उसने बहुत कुछ उसके पहले टेस्ट किया होगा, Correct. तो वो इतनी आसानी से बता रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ है। right. मतलब सुनना बहुत ज़रूरी है, अपने ईयर्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। Yeah. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग, वो ये आपको किसी कोर्स से या नहीं। 5 मॉड्यूल वाले किसी क्लास आपको से नहीं guidance है। मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिसेस मिलेंगे, एक्सरसाइज मिलेंगे, गाइडेंस हाँ। मिलेंगे, लेकिन एफर्ट तो आप ही को डालना है। सुनना तो आपको ही है, सुनना कान तो तो आपको आपके ही ही है। है, आपके कान से वो नहीं सुनेगा। But good that we are having this conversation, because if anyone is watching this और जिसको वो अभी तक चमका नहीं है ना कि भाई ईयर ट्रेनिंग कितने लेवल तक इम्पोर्टेंट है, तुमको दुनिया भर का म्यूजिक थ्योरी पता होने दो, तुमको पियानो बजाने आने दो, ये होने दो, कुछ भी होने दो, बट इफ योर ईयर ट्रेनिंग इज नॉट ऑन पॉइंट और एटलीस्ट above to an optimal level, you can't really go further, proceed further in your career in a true form. मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली। So I think year training का जो importance है, I think there should be very loud announcement कि before anything just understand how important your year training is before you go into any kind of DJing or music production or engineering and this and that. Understand कि every day, even if you are a professional or a beginner, year training will keep on happening. Year training will never end. It will never end. It will keep on evolving. It will keep on changing, and you need to treat your ears that way कि भाई कल कुछ नया आएगा तो मुझे इसको कैसे करना Yes, है, correct. because sound has evolved a lot since recorded sound. Yeah. सुनना तो अभी कब से हो रहा है, recorded sound has evolved a lot since its beginning. Yeah. तो ये तो होते ही रहेगा, and it is evolving exponentially now. Yeah. मतलब ऐसे नहीं कि भाई डबल्स और ट्रिपल्स में कर हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इवॉल्व हो रहा है। द टेक्नोलॉजी हाउ इट इज़ कमिंग, द जॉनर्स जो चेंज हो रहे हैं, तो 2 जॉनर को मिला दिया तो तीसरा जॉनर अभी मार्केट में आ रहा है, तो वो तो बढ़ते जाने वाला ही है। एक बार ईयर ट्रेनिंग रहेगा तो you wouldn't feel that much challenging about these things. नहीं होगा नया जॉनर आया, ठीक क्या, है, then create मुझे it. तो पता है इसको कैसे करना है रेप्लिकेट, बिकॉज यू नो द फंडामेंटल्स ऑफ द साउंड, दैट्स इट। I think एक डिजाइन, अच्छा हाँ, गेट लो का हाँ, मैंने मेरे पूछा को था। समझ में आया, ठीक है क्या करना है। The minute you ask me that question, मेरे को पता है कि ठीक है मैं सेरम में ये करके कर सकता हूँ, मैं इसमें ये करके कर सकता हूँ। मतलब your mind immediately goes into that transaction यस, कि okay, first step, second step, third step, then you know what to do. जैसे एक शेफ को एक डिश खिलाई और बोलो कि ये घर पे बनाना है, वो उसको पता चल जाएगा, बना देगा वो। That is the importance of year training which everyone needs to go through. एग्जैक्टली। Okay, now last few of them which I want to just discuss with you is, what do you think of AI music making, music generators? How will it benefit the people who are actually doing it right now? And is it really that dangerous though? नो, People think that it is going to take away the नहीं, job. Okay, नहीं। So give me a whole view on सी this. AI जो यूज़ करते हैं ना, जिसको पता नहीं है कि AI ऐसा है कि बटन दबा, ऐसा नहीं होता। जो AI यूज़ करता है उनको पता है कि अनटिल एंड अनलेस मैं उसको राइट प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा वो मुझे रिजल्ट नहीं देगा। इट इज़ जस्ट हेल्पिंग यू, बट इन अ वेरी ईजी वे। इट इज़ अ लॉट ऑफ डेटा, बहुत कुछ है उसके पास। गूगल नहीं है, गूगल मत समझो, गूगल एक छोटा सा बच्चा ही है के सामने, ठीक है। गूगल सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ये आपको सब कुछ करके देगा जो टूल्स ऐसे आए। Yes. लेकिन जब तक AI को आप पूछो, राइट प्रॉम्प्ट नहीं दोगे, मतलब राइट कमांड नहीं दोगे कि तू मुझे ये करके दे, तब तक वो AI कुछ नहीं, वो AI यूजलेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT के अंदर जब तक आप उसको प्रॉम्प्ट नहीं दोगे कि मुझे ऐसा पिक्चर बना के दे, वो तब तक वो पिक्चर नहीं बनाएगा। लेकिन वो प्रॉम्प्ट भी ह्यूमन देता है। आपका प्रॉम्प्ट कितना क्रिएटिव है वो आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो
when the early age of computers came 1990s 2000 जब computers आए corporate world में तो तब लोग manually paper पे Right, अकाउंट सब right. कुछ डेटा मेंटेन Right, हो रहा था bookkeeping तो already हाँ होता था। तब जब वो जो क्लास था वर्किंग वो बोल रहे थे यार कंप्यूटर्स जॉब खा लेंगे कंप्यूटर्स जॉब खा लेंगे कंप्यूटर्स कैसे जॉब खा लेंगे वो थोड़ी अपने आप से काम करेगा कंप्यूटर चलाओगे तो आपका काम होगा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 25 साल बाद अभी एक नया कंप्यूटर आया है जो कहीं पे भी अवेलेबल है आप कहीं से एक्सेस कर सकते हो फिजिकल नहीं है ठीक है जैसे अगर उस टाइम के जो स्मार्ट लोगों ने समझ के मुझे इसको सीखना है मुझे इसको कंट्रोल करना है तो मैं मेरा काम जो 10 घंटे में होता था वो अब 1 घंटे में होगा अगर मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर दूँ तो सेम इज़ विथ AI सी AI इज़ नॉट बैड AI है एक टेक्नोलॉजिकल लीप आया हुआ है सब इट इज़ डिस्टरप्टिंग लाइफ्स ठीक है बट इफ यू But I think it is disrupting lives of the easy skills. यस You need to know कि भाई you have to up your skill. हाँ यस अगर तुम AI को तुम मास्टर कर लेते हो अगर तुम उसको बोलते हो कि एक प्रोवर्ब है कि भाई अ गुड क्वेश्चन इटसेल्फ इज द हाफ आंसर बोलते हैं ना कि भाई एक अच्छा सवाल आधा जवाब के बराबर है AI भी ऐसा ही है अ गुड प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आंसर और हाफ ऑफ द रिजल्ट विच आर गेटिंग AI से डरना नहीं है आई यूज़ AI बहुत सारी चीज़ों में मैं AI यूज़ करता हूँ वो आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए कि AI को कैसे यूज़ करना है Yes. अभी तो ऐसा टाइम नहीं है कि AI अपन को यूज़ करे टर्मिनेटर मूवी वाला जैसा पता नहीं होगा अगर ह्यूमंस अच्छे से यूज़ करें तो शायद नहीं होगा टॉकिंग अबाउट दैट तो AI भी बहुत इवॉल्व हो चुका है पिछले 2-3 सालों में म्यूजिक सीन के अंदर Every 3 months it goes to next level. Yeah. क्योंकि वो डेटा भी अपन ही उसको फीड करने के लिए देते हैं कि ये नई चीज़ आई है तू तेरे एल्गोरिथम में ले तेरे इसके अंदर ले हाँ और मुझे ये करके दे लाइक यू कैन मेक ट्रैक्स आउट ऑफ प्रॉम्प्ट्स यू कैन रेप्लिकेट वॉइसेस विच इज़ क्राइम बाय द वे करते हैं लोग यू कैन मेक वॉइसेस आउट ऑफ इट जस्ट बाय गिविंग प्रॉम्प्ट्स के मुझे ऐसा ग्रिटी डार्क थोड़ा बेस वाला मेल वॉइस चाहिए जिसके हिंदी एक्सेंट्स हो जो इंग्लिश में बात कर सके तो AI आपको ये वॉइस जनरेट करके देगा लेकिन वो जो उसके पैरामीटर्स है वो तो आपको ही डालने हैं वो AI नहीं करके देगा तो अनटिल एंड अनलेस आप AI से फ्रेंडली नहीं हो ना वो आपको फ्रेंडली रिजल्ट नहीं देगा और AI यूज़ करने के लिए आपको इट विल टेक टाइम जैसे 20-25 साल पहले कंप्यूटर यूज़ करने में लोगों को तकलीफ हुई थी एंड आज तो सबके हाथ में कंप्यूटर है ठीक है शायद इसको भी ऐसे ही इवॉल्व हो सकता है बट आई थिंक सी मेकिंग म्यूजिक फ्रॉम AI इज लाइक a 3-minute जॉब लाइक मतलब आपको जो रिजल्ट आया वो 3 मिनट का गाना है फिर 2 मिनट का गाना है फॉर एग्जांपल I cannot prompt AI कि 1 मिनट के 20 सेकंड में मेरे को चाहिए हाँ you can't do that वो नहीं है अब वो अभी AI के पास नहीं है so basically I think right now anyone thinking to come into music production and making mediocre level of tracks तुम्हारा काम डेंजर में है क्योंकि वो AI कर पा रहा है ऑलरेडी but anyone thinking to actually come into music production to actually become and do something creative then I don't think so AI is a danger in fact AI is a one of tool that it's one of the tools which are using to hone your skill अपने काम को पुश देने के लिए आप AI यूज कर रहे हो तब so let's say for example मुझे टेम्पलेट बनाने के लिए 1 दिन गया कि पूरा 3 मिनट का टेम्पलेट अच्छा यहाँ पे ऊपर चाहिए नीचे चाहिए okay let's see I'll listen to multiple I'll just give a prompt 4-5 tracks में बना के I'll take that as a template I can put one track of AI जो भी AI ने बना के दिया है मैं उसके स्टेम्स निकाल सकता हूँ उसमें के बेस पसंद है मैं बेस यूज कर लूंगा मतलब इफ यू नो हाउ टू यूज दैट मतलब वही फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक कंपोजर है ठीक है उसने धुन बना दी है लिरिक्स डमी लिख दिया अभी क्लाइंट आ रहा है प्रोड्यूसर आ रहा है उसको कुछ सुनाने के लिए चाहिए ठीक है तो वो धुन गा लेगा उसके अंदर AI को बोलेगा कि धुन के अराउंड तो कुछ ये फील का एक रोमांटिक हाँ एक बना दे और
उसके ऊपर सिंगिंग कर देगा. सो Correct. दिस मेक्स योर जॉब ईजी. करेक्ट. डजंट मीन दैट कि वो कंपोजर वो ही चीज़ यूज़ करेगा, लेकिन उसका जो सपोज 2-3 दिन का जो एक पायलट प्रोग्रामिंग का जो एक सेशन है वो 3 उसका घंटे में हो 2-3 घंटे में हो गया. आराम से हो गया. So मतलब if your capability was to make 2 songs in a month, you can go to like 10 songs in a month. Exactly. Good clean 10 songs. डेमोज अब जो कंपोजर्स Yes. है डेमोज बना के रखते हैं, तो उनको डेमोज प्रोग्राम करने होते हैं, Yeah. किसी को देना होता है. अब वो खुद डेमोज बना सकते हैं विद जस्ट राइटिंग अ प्रॉम्प्ट. Right. So it's ultimately going back and forth whenever it comes to a creative field. जब AI क्रिएटिव फील्ड में एंटर करता है, आई थिंक इट गोज बैक एंड फोर्थ. मतलब वो प्रॉम्प्ट जनरेटर से शुरू होता है, AI के पास जाता है, लेकिन AI से जो रिजल्ट आता है आपको एंड में जाके उसको थोड़ा एडिट करना ही पड़ेगा. तो आई थिंक वो वो ह्यूमन टच तो देना ही पड़ेगा. और क्योंकि अगर जो भी थोड़ा भी एडिट करना है आपको, फिर भी आपको म्यूजिक थ्योरी पता होनी चाहिए. एग्जैक्टली. कान आपके फिर भी ट्रेन होने चाहिए. क्योंकि जो आपका म्यूजिक सुनेंगे ऑडियंस से पहले, हम्म, फॉर एग्जांपल लेबल है, हम्म, A&R है, हम्म. रिसर्च टीम है जो सर्वेस करती है, तो फिर म्यूजिक के लिए background उन्होंने ये सब सुना हुआ है, वो पता चल जाएगा ये AI है भैया. Of course. तुमने क्या किया इसके अंदर? वो तो ये करना बेवकूफ. तो तुम्हें खुद घर पे बैठ मैं के खुद करता. कर देता. लिरिक्स तो चैट जीपीटी निकाल के दे देगा अभी. Yeah, of course. ये तो मैं भी कर सकता तो हूँ. सुनो में भी हो जाएगा. हाँ. सब कुछ. AI is a starting point. It's making your work easy. Easy. It's not taking over your work. Or rather, if you have a writer's block, it's just going to give you multiple ideas where you can Yes. start inspiration. Exactly. But तो इससे डरने की जरूरत नहीं. उसको इंस्टॉल करो अपने वर्क लाइफ में कि AI is a normal thing. AI is a normal thing. एक नया टूल आया है, उसको यूज करो. ये कोई आपको कुछ खून नहीं कर देगा, ना आपके Right. पैसे खाने वाला है. वो पैसे कमा के कहा जाएगा, वो Right. उसको थोड़ी खर्चे करने हैं, तो पैसे तो आपको कमाने हैं, उससे उसको यूज करके कमाओ भाई पैसे. तो मतलब आपके वर्क कल्चर में यूज इट एज अ टेम्पलेट. यस. यूज इट एज अ स्टार्टिंग टूल. हाँ, कुछ अटक रहे हो तो प्रॉम्प्ट करो, निकल आएगा. हाँ. कुछ इसको कैसे कर सकते हैं, तो वो आइडियाज दे सकता है आपको. आइडियाज इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट तो आपको करने हैं. Correct. Ultimately, it's not something to get scared of. You can get scared of if you don't know anything. If you don't know anything, or your thoughts were only very mediocre about हाँ, making मतलब music. बहुत इजी था कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, कर तो ये हाँ. भी कर सकता है तो कर यार. लो. तो it's like don't get scared of something which is new in technology always. In fact, get scared that you are not ready. You are to not up doing your- it. हाँ. Or you are not developing your skills. हाँ, you are not expanding your horizons, Yeah. working हो रहे हैं. तुम अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो Push नहीं वो टेक्नोलॉजी को Yeah. रीच आउट करने के लिए. Right. क्योंकि तुम नहीं यूज करोगे तो कोई दूसरा तो यूज करेगा ही. Yeah. और वो And तो it will be too late for you to realize हाँ. कि अरे ये तो मैं भी कर सकता था, 1 साल पहले सोचा था. हाँ, और वो उसने उससे किया. रिजल्ट भी निकाल के देगा. 100%. तब जब आपको रिजल्ट पता चलेगा 1-1.5 साल पहले, तब आपको अफसोस होगा कि शायद मैं भी तो अगर अपनी बाउंड्रीज को पुश करता तो मैं भी ये अचीव कर सकता था. Definitely. So this is what is all about AI. I think ये Yes. डर तो जाना चाहिए कि कुछ नहीं भाई, उसको कुछ नहीं use है it as भाई, a tool हाँ. only. You make sure that you are developing your skills and Yes. training your ears and doing your practices of music theory and multiple things. In fact, editing skills मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए. Many people just miss on those point कि sound designing is actually a gold mine for every producer. कि ऐसे साउंड्स आप बना सकते हो जो AI भी सोच के भी नहीं बना सकता. हाँ. अब उसको करोड़ों प्रॉम्प्ट्स दो, वो नहीं चीज कर सकता. सो जो ह्यूमन टच में आप चीज कर सकते हो साउंड डिजाइनिंग के थ्रू. सो नोइंग द स्किल्स ऑफ साउंड डिजाइनिंग, म्यूजिक थ्योरी, ईयर ट्रेनिंग एंड ऑल दीस थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. इवन इफ AI comes or goes, doesn't AI matter. भी अगर कोई साउंड निकाल के देगा तो वो किसी ने बजाया होगा right. वो ही निकाल के देगा. वो बस वो उसको morph थोड़ा करके- हाँ थोड़ा पैरामीटर्स हाँ, चेंज करके देगा. that's it. नया कुछ नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि वो डेटा जो अपन फीड करेंगे उसी को थोड़ा ट्वीक करके वो आपको रिजल्ट देता है AI. Correct. नई चीज़ तो यही से आती है. Of course. वो आप कहीं पे अपलोड करोगे, स्ट्रीम करोगे, कोई कंपनी डेटा कंपनी उसको AI में फीड करेगी, तो जब जाके उसका रेफरेंस बनेगा Yeah. उसके लिए, Yeah. तो वो आपको वो साउंड को रीमॉडल करके फिर कुछ नया आपको देगा. शायद किसी ने नहीं सुना है, लेकिन आपको पता है कि भाई ये तो मेरे साउंड जैसा लग रहा है, ये तो मैंने बनाया है ऐसा. नहीं, बट इफ योर साउंड्स आर जस्ट टू कॉमन, सिर्फ 100 वे भी अगर आप यूज करके लीड्स ही बनाते हो,
और वही चीज AI ने बना के दिया, then you can't say कि this sounds like me. हाँ You're starting with your sounds are only very mediocre. एग्जैक्टली. So you can't say all those things. So sound designing उधर भी आ गया. So the level of manuality and automatically चीजें वो बनने वाली जो चीजें, that is basically AI behaving automatically. Still आपको prompt करना पड़ेगा, आपको हजारों generations करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉम्प्ट में आ जाएगा. वही तो एक prompt ऐसा नहीं है वो. ऐसा नहीं होने वाला ना. प्रॉम्प्ट्स भी आपको ट्वीक करने पड़ेंगे. आप रोज बैठ के कितने गाने बनाओगे AI से, तो और उसमें से आपको सिलेक्ट भी करना कि भाई कौन सा इसमें का ये पार्ट अच्छा, उसमें का वो पार्ट अच्छा है. लेकिन ये अलग स्पीड पे, वो अलग स्पीड पे, उसके लिए भी आपको आके डॉ में ही एंड करना पड़ेगा अल्टीमेटली. So that was all about AI. Alright, so ending this with few of the last things कि okay, how do you know me? I came to know about you in Facebook 2010 2011 I guess. Because at that time we were doing bootlegs and all. तब genre था house, progressive mixes of all the Bollywood things. Electro बहुत चल रहा था. 2010 2009. हाँ, electro mixes, electro house mix, progressive house mix, and I came across your name. तब this Skrillex and all had entered into the scene, and there was this new genre called dubstep. और dubstep मतलब मुझे मेरे लेमन के अंदर तब डबस्टेप वॉज के ये हाफ टेम्पो सॉन्ग है. अच्छा. जो खींच के बनाया है किसी ने. फुल टेम्पो सॉन्ग नहीं, हाफ टेम्पो सॉन्ग है. हाफ टेम्पो ब्रेक बीट, फिर उसके अंदर आप ग्राउलिंग बेस और सब डाल दो. मतलब जो ब्रेक बीट अगर बजेगा 120 पे, तो ये बजेगा 60 पे हाफ टेम्पो के अंदर. उसको स्लो डाउन करके इसको डबस्टेप, मतलब वो एक इनिशियल इम्प्रेशन था. फिर तो सुनते सुनते लॉट्स ऑफ थिंग्स हैड इवॉल्व्ड, एंड आई थिंक आई हर्ड वन ऑफ योर मिक्स कि भाई ये इसने डबस्टेप मिक्स बनाया इसका. बहुत सारे बनाए थे उस वक्त. हाँ, एंड यू हैड एंटर्ड. 2009 में तो बहुत सारे बनाए. you were the first, I think, not one of the first, who started doing dubstep Bollywood tracks. So first one I did, I remember, was 2008. It was a remix of a very African track tha, and it was in house, and I used to love that वो जो बोल करते थे ना उसमें ad-libs वगैरह थे, Yes. African ad-libs थे. I used to love that, and वो track थोड़ा famous हो चुका था YouTube के ऊपर. और YouTube से थोड़े मतलब देर के बाद की बात है, almost 2008-2009 की बात है. And then I just took that vocal and I made that into dubstep. I remember कि वो मैं खुद surprise हो गया था कि I can make this. Because उस time FL Studio में there was a plugin called as Wasp. If anyone remembers this, there was a plugin called as Wasp. And in that I discovered कि okay, दो oscillators है. I can merge these two oscillators together. मतलब almost FM synthesis type ही लगता था. It was not FM synthesis. I was just doing additive synthesis and subtractive synthesis using these plugins, which created that growling kind of effect. Wobbling. Yeah, and then I was able to also move the filters एक इसमें, and then it created almost the same thing, and I was like, this sounds different, and that was the first initial thing. 2008 2009 I remember कि तुझे बुला दिया का मैंने डबस्टेप रिमिक्स किया था. कोला वाई दिस कोलावेरिटी, ये सर उस टाइम के बाद शुरू हो गए थे. तभी से आई थिंक सुनना चालू किया था, बिकॉज एट दैट टाइम डीजेस का एक जो बूटलेग्स बनाते थे, देयर वाज दिस टेम्पो थिंग कि 128 से 130 के बीच में ही सब मिक्सेस होते हैं. ये मिक्स होता था 150 पे, 160 पे, 140 पे जा रहा था, और ये साला हाफ टेम्पो पे बज रहा है. कुछ नया है. मतलब वी वर ऑल स्टार्टिंग टू लिसनिंग टू स्क्रिलेक्स एंड दिस अदर गाय कॉल डीजे स्नेक, तो बाद में आए थे. ज़ोम्बो एक था. स्क्रिलेक्स के साथ देयर वाज दिस गाय. इवन जेड ने भी किया था. जेड, हाँ, जेड का साउंड तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक था. डी से उसका नाम है, मैं भूल गया. डी डास्टिक नहीं डासिक ऐसा कुछ तो है शायद. I think तुम जो बोल रहे हो मेरे को आ रहा है दिमाग में. He has like good music videos also. And completely forgot. Dubstep UK के इसमें उसके बहुत सारे रिलीज. I know whom you're talking about. हाँ. क्योंकि उसी एरा में था. हाँ, बस उसी एरा में वो डबस्टेप प्रोड्यूसर्स आने लगे. Skrillex was the big. उस टाइम थे बहुत सारे. Skrillex was the big name. मतलब तब तो बीटपोर्ट पे सुनना था. तब तो इनके तो म्यूजिक यूट्यूब पे आते नहीं थे. बीटपोर्ट पे जाके
सुनते थे कि भाई क्या आया है, अभी क्या चल रहा है, यूरोप के सीन में क्या चल रहा है, अमेरिका के सीन में क्या चल रहा है, अभी कौन सा नया प्रोड्यूसर आया है, कौन सा नया डीजे आया है, तब वहाँ पे सुनते थे. एंड देन आई फाउंड कि भाई ये बंदा डबस्टेक बूटलेग्स करता है ऑन फेसबुक. ऑन फेसबुक. तब डीजे अपलोड्स हुआ करता था. Oh yes. Only for DJs. हाँ, ओनली फॉर डीजेस. AIDC. AIDC सब कम्युनिटीज थे, सब ने अपने अपने बना के रखे थे. तो दैट वे आई फाउंड यू एंड देन ऐड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट. तब से फ्रेंड्स है. Honestly, मतलब I don't know you that ways ना, मतलब कभी चेहरा देखा और नाम देखा और वो दिमाग में बैठ जाता है. तो वो मेरे को याद ही नहीं है वो चीज, because I remember DJ हमजा very well. कि एक पेज होता था. हाँ. वो मेरे को पता है, बट शायद चेहरा नहीं, वो मैच नहीं हुआ मेरे को. तो इसलिए लाइक who are you bro. उस वक्त मेरे को ऐसा फील हुआ. देन रिसेंटली जो हमने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया, मेरे को हमेशा लगता था कि व्हाई डू आई नो यू. आई कनेक्टेड बट व्हाई डू आई नो यू. मेरे को ऐसा ही फील होता था. बट नाउ दैट यू टोल्ड मी दिस, तो आई रिमेंबर कि ठीक है ये चीज है कि आई वाज अच्छा. एनीवेज ये इसको तो जाने दो, ये वो अच्छे से करें. सो मेरे को वही क्वेश्चन था जो मिलने के बाद मैंने फर्स्ट पूछा कि डू वी नो ईच अदर प्रॉपर्ली. ये इस चीज के लिए नहीं. एंड ओके, विल एंड विद दिस वेयर जस्ट शेयर अस अबाउट योर रीसेंट प्रोजेक्ट जो आपने ईपी निकाला है. या तो जस्ट इन ब्रीफली शेयर व्हाट एग्जैक्टली. सो recently on 26th of May, there is a EP which released, which I produced, mixed, mastered and recorded with a rapper called Smile Radiator, and it's out there playing on Spotify right now with the name कुछ तो लोग कहेंगे. There are कुछ तो लोग कहेंगे, नाम ही है ऐसा भाई, कुछ तो लोग कहेंगे. EP का नाम ही है. So I have done it with this fantastic rapper Smile Radiator, who is also from Surat. And he's an upcoming, proper commercial artist who has this hunger for good music and all. और आ चुका है 3 tracks है उसके अंदर. All 3 are different but commercial rap hip hop है. एक track है पूकी शायर करके, it's romantic. It has शायरी, it has singing, it has rap. All 3 elements done by Yash aka Smile Radiator. Then there is this track called Filmy Flex. उसके अंदर it is proper rap track. Okay. Beats के साथ. Okay. But the thing is the rap उसके अंदर जो है वो हिंदी फिल्म के references use किए उसने rapping. As in हिंदी फिल्म के मतलब गब्बर, सिंघम, हाँ उसके references लेके उसने flex किया है. रैप के अंदर फ्लेक्स किया है रेफरेंसेस लेके. और मैंने म्यूज़िक भी मतलब वो वेरी बॉलीवुड ओरिएंटेड है उसके अंदर, बट प्रॉपर रैप सॉन्ग. एंड थर्ड वन इज़ BYOB विच इज़ अ प्रॉपर कमर्शियल पार्टी सॉन्ग. आप पार्टी कर दो, आप उसको चलाओ, आप हाथ उठा के नाचोगे. वो एक होता है ना, ये डालना पड़ता है बेचने के लिए. एक कमर्शियल ट्रैक डालना पड़ता है. सो ऑल 3 ट्रैक्स, 3 डिफरेंट ट्रैक्स. आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा. सो इट्स देयर ऑन ऑल द डिजिटल म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स, एप्पल म्यूज़िक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गाना. सो स्ट्रीम इट. तो spread some love. Just go ahead and stream it out. Alright, so this was Hamza Laginawala from Surat. And we had not planned this podcast or just a talk, but we thought that अगर हम मिल रहे and we don't know कि next time कब मिलने वाले, because he'll be going back to Surat. And then this was a good opportunity to have a word and understand certain insights. I don't keep on doing podcasts. This is like पहली बार मैंने कुछ किया ऐसे podcasting. तो मैं I am honored. तो I thought कि why not just give it a start in a very raw way. So I'm not dressed up, I'm not done my hair, and he's not like. मैं भी ऐसा ही हूँ. ऐसे ही. ये जो lights लगे एकदम random, super randomly लगे हो. You can see the shadow, and it's not like professional lighting. You know? So this is super random, and this is raw. So that is why we thought कि why not just give it a chance and just try it out. वरना कब तक सोचेंगे कि हाँ एक दिन हम podcast करना है करेंगे नहीं तब तक. वही ये बीट बनाना जब तक किक डालेंगे नहीं ना तब तक नहीं हो जाएगा. करेंगे. Because when do you guys also
see a DJ, a music producer, sound engineer, and a mix engineer, mixing mastering engineer, a record engineer, music studio, a recording studio, and these two people kind of sitting and just sharing ideas or just sharing their thoughts and their thinking process. ये ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि हम लोग अगर पर्सनली मिलेंगे कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं खाने के लिए यही बातें करेंगे. तो आई थॉट दिस वाज अ गुड चांस टू जस्ट रिकॉर्ड दिस एंड शेयर इट विद द वर्ल्ड. जिसको वैल्यूबल लगा जिसको लगा कि क्या बोरिंग बात कर रहे हैं तो बोरिंग बात कर रहे हैं. डजंट आई डोंट केयर. as my the name of my EP says, कुछ तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना. Go ahead and stream it out. So this is me, Mr. Jammer, also known as Vikas J, Vikas Jangamwat from G Studios Academy, and Hamza Daginawala, Studio 53 53 from Surat. Signing off. Thank you so much for watching this. Bye bye.